A very good evening to one and all present here. It's an honor for me to welcome you all on this day where we are gathered for a career guidance session. I, Miss Susan Pulley of Science FYJC Division C, behalf of Sate College Science Association Junior College, is greatly privileged to take this opportunity and welcome you all on this graceful event. I extend a hearty welcome to all eminent faculty and my dear friends. We also extend a hearty welcome to our principal, Dr. Madhav Rajwade Sir, Vice Principal Dattatreya Nerkar Sir, Vice Principal Pramodini Sawant Madam, Assistant Principal Vinod Gaware Sir, Supervisor Dr. Naren Kishan Sir, Supervisor Anjali Sawant Madam, Cultural Head Jayashree Gaikwad Madam, Cultural Coordinators Gautam Tankarle Sir, Sameer Jadhav Sir, Shamala Gaware Madam and Shrikant Nehate Sir. All teachers and my dear friends. Friends, you must all have seen that people find themselves in a state of dilemma before making important decisions in their lives. Generally, everyone seeks advice from parents and friends before deciding on what to wear, which gadget to purchase, or which diet is the best suitable for us, and also which is the best exercise for us. Shouldn't the same logic be applied while choosing a career or changing career paths, which is supposed to be a big decision one makes of one's life? Thus, one must go for career guidance. For people who find it difficult to realize the right career options meant for them, a career guide helps them to sort this confusion. There are infinite career options available to choose from. And without an expert's proper guidance, one might stick to a very few that his or her friend or her relatives might ask him to pursue. An informed career guide makes one aware about the scope of every career option in detail, which widens the horizon for the students. So we have organized this event, a guest lecture on career guidance on the subject Career Options for Science Students. As our principal, Dr. Madhav Rajwade Sir is busy in some important meeting, we would like Dr. Dattatreya Nerkar Sir to kindly take over. We request him to speak a few words. I'm very happy, dear students, dear faculties, and today's resource person, Mr. Santosh Kale, that right now I was in another program where we were organizing such same program that what are the career opportunities after BSc Physics, and in that expert as well as some alumni were there, that how they got diverted to different fields that we come to know. And I'm really happy that a back-to-back such second program is there. In our traditional education system, after 10th, first time you got a choice that whether to go for art, commerce or science. And even once you take science, after science, generally what we know is going to engineering, going to say doctor or going to science. These are what traditionally known things are there. But the education system now is so diversified and expanding that creates new job and opportunities and changing the way individuals like to make their career and career choice. Such changes place career planning and become more complex and confusing. In such times, we need someone who will guide us and mentor us so that it will be very good for us to choose a right path for our career. So I must congratulate Science Association that they have organized such important lecture so that will be helpful for all our students. Along with Rohini Tavde Madam, all the Science Association member, they are doing the really good job. The right person to guide and answer most of the questions regarding your career and how to choose a proper career, none other than Mr. Santosh Kale Sir is there. So I will not waste any time just giving a further speech. I will ask the organizers to continue with the program, and all the best for the program. Thank you, sir, for your motivational, encouraging words of wisdom. Now I would like to request our team member, Mansi More, to introduce the speaker. Thank you, Susan. The world is full of diamonds and gems, and
are having one of them here today to build this event. It's a great privilege for me to introduce our guest of honor and speaker of our today's guest lecture, Shri Santosh Undangavkar Karle sir. The CV is quite lengthy and it's very difficult to read out all his achievements, but I will brief you about some of those, as you all must be keen and excited to hear from sir. Sir has completed his MA in Economics. He had given more than 1,200 lectures on career guidance throughout Maharashtra. Sir had given various career guidance lectures in education fairs organized by Lakmat and Saka. Sir has also worked as guide in many vocational training programs which was organized for teachers by SCRT Pune. Sir's career guidance lectures were also broadcasted on Aurangabad and Pune radio stations. Really, we are very fortunate to have you sir with us today. Now I will request Karle sir to guide us. Good evening. Sate College Organization Science Associates Junior College, जो आज का जो साइंस ओनली साइंस के लिए करियर का जो सेशन रखा है ऑनलाइन, पहले तो साटे कॉलेज के प्रिंसिपल सर डॉक्टर माधव राजवाड़ेकर सर, वाइस प्रिंसिपल नेरकर सर और साइंस एसोसिएट के ऑल मेंबर्स और पावड़े मैडम, इनके ओर से आज जो साइंस के लिए करियर अपॉर्चुनिटी का करियर लेक्चर जो आयोजित किया, मैं उनका स्वागत उनके तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे को इनवाइट किया। पहली बात यह है कि क्योंकि ये करियर ऑप्शन जो है बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन मैं आंकड़ेवारी में बताता हूँ करियर के ऑप्शंस कितने हैं। फॉर एग्जांपल साइंस के रिलेटेड अगर करियर देखे जाए तो साइंस में 200 करियर ऑप्शंस है। 12वीं साइंस के बाद में अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो अपने को सिर्फ MBBS BDS इतना मालूम है, BMS वगैरह मालूम है, लेकिन MBBS होने के बाद MDMS करना पड़ता है। लेकिन MDMS होने के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन जो है वो कम से कम 109 ब्रांचेस में है। MBBS के बाद में अगर डिप्लोमा लेवल का अगर करियर चॉइस करना चाहते तो 97 ब्रांचेस है। अगर 12वीं साइंस में PCM ग्रुप है तो अपने को सिर्फ इतना ही मालूम है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में अपने को 1-2 ब्रांचेस मालूम है, लेकिन इंजीनियरिंग में कम से कम 87 ब्रांचेस है। उसके अलावा अगर करियर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो अगर 10वीं पास होने के बाद अपन साइंस चॉइस करें तो साइंस के होने के बाद अपने को सिर्फ 2 ही रास्ते मालूम है, एक इंजीनियरिंग या मेडिकल। और इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए सिर्फ अपने को 3 एंट्रेंस एग्जाम मालूम है, एक JEE, एक CET और NEET। ये 3 एंट्रेंस एग्जाम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 100+ एंट्रेंस एग्जाम है कि वो बच्चे दे सकते हो, एग्जाम को बैठ सकते हैं। लेकिन एग्जाम कब होते हैं? 12वीं के एग्जाम होने के बाद अप्रैल, मई और जून के दरमियान होते हैं। लेकिन कोविड के वजह से जो है कि ये एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा आगे चले गए, 12वीं के बोर्ड के एग्जाम भी आगे चले गए। लेकिन ये एग्जाम को है कि अभी फॉर्म निकल चुके, आप फॉर्म भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आप कौन सा भी एजुकेशन लीजिए, आप कौन सा भी डिग्री लीजिए, MBBS करिए या इंजीनियरिंग करिए या BSc करिए, प्लेन डिग्री में कोई अहमियत नहीं है। जब तक आप मास्टर डिग्री करते नहीं, जब तक आपको कोई कीमत नहीं है। तीसरी बात यह है, महाराष्ट्र का जो स्टूडेंट है ये पीछे क्यों रहा, इसकी वजह एक ही है कि आपको अपने कॉलेज में या हर लाइब्रेरी में जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर आता है वो कभी पढ़ता नहीं, क्योंकि पूरे एडवर्टाइजमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आते, फिर बाद में बाकी के इसमें पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उस पता नहीं चलता। लेकिन अब ये सोशल मीडिया की वजह से उनको मालूम गिरता है। लेकिन मैं क्लियरली बता देता हूँ स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर भरोसा मत रखिए। जो लीगली वेबसाइट आती है उसके ऊपर भरोसा रखो, उसमें से जो एडवर्टाइजमेंट आएंगे उसमें से अपने को सही मालूमात गिरेंगे कि अपने को करियर कौन से फॉर्म निकल चुके हैं। अभी भी वायरल हो रहा है कि नीट की तारीख तो डिक्लेयर हो गई, लेकिन नीट का फॉर्म एप्लीकेशन भरना चालू होगा। बिल्कुल नहीं, अभी नीट का कोई फॉर्म आया नहीं। दूसरी बात यह है, पहली बात तो ऐसे करियर 10 ऑप्शन चॉइस करके रखिए, क्योंकि एक अगर नंबर नहीं मिलता है, MBBS को नंबर नहीं लगता है, IIT को अगर नंबर नहीं लगता है, तो अपने को कम से कम 10 ऑप्शन चॉइस करके रखना है कि वो हिसाब से अपने को करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। मेरे लेक्चर में से अपना जो है आत्मपरीक्षण करना जरूरी है कि मेरे को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, उसके बाद में मेरा स्कोर क्या आने वाला है, उसके बाद में मेरा ऑल इंडिया रैंक क्या आने वाला है।
वो बेस के ऊपर अपने को कौन सी इंस्टीट्यूट कौन सी ब्रांच मिलेगी उसके ऊपर डिसाइड करना है कि उस बेस के ऊपर अपने को कौन कौन सा करियर अपॉर्चुनिटी है। मेरे लेक्चर से इसमें से भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिलना है कि आप मेरे लेक्चर में से कितने कितने ब्रांचेस अपनों को करियर के लिए खुले हैं। अब मैं जो तीन इंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो बताने वाला हूँ। आपको जेडब्ल्यू पता है, जेडब्ल्यू में पेपर 1 पेपर 2 होता है। अगर कोई भी बच्चे को पूछा या स्टूडेंट को पूछा पेपर 1 देने वाले क्या पेपर 2 देने वाले, इसमें पेपर 1 पेपर 2 क्या होता है? पेपर 1 जो होता है तो इंजीनियरिंग के वास्ते होता है, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। जेडब्ल्यू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। पेपर 2 आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, बी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के लिए होती है। इस बार जेई मेंस 4 बार लेने वाले हैं, अभी 2 अटेम्प्ट तो हो चुके हैं। उसके बाद में इसमें 2 एग्जाम होते हैं, मेंस और एडवांस। अब एडवांस और मेंस के बेस के ऊपर अपने को कहाँ का एडमिशन मिल सकता है उसमें क्लियरिटी मैं आपको कर देता हूँ। आप बोलेंगे सर हमको तो ये पता है, लेकिन ये क्लियरिटी कोई भी क्लासेस वाला या कोई कॉलेज वाला कोई बता नहीं सकता। एडवांस के बेस के ऊपर आईआईटी कितना है हिंदुस्तान में? 23 और 23 आईआईटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 इंस्टीट्यूट है, एक रायबरेली में राजीव गांधी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी और एक विशाखापट्टनम में, वो आईआईटी रैंक के इंस्टीट्यूट है। लेकिन इसमें कुल मिला के जो सीट है कम से कम 16,000 के लगभग सीट्स है। लेकिन एडवांस में बैठने वाले बच्चे जो है इस साल 2021 में 3.5 लाख बच्चे बैठने वाले एडवांस के लिए। लेकिन 3.5 लाख जो एडवांस क्रैक करते हैं उसमें से अपने को 16,000 के अंदर आना जरूरी है। अगर अच्छी आईआईटी होना है तो ऑल इंडिया रैंक अपने को 3,000 के अंदर आना जरूरी है। अगर अच्छी ब्रांच भी होना, अच्छी आईआईटी में होना तो अपने को ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर आना जरूरी है। लेकिन आईआईटी में सिर्फ बीटेक इंजीनियरिंग है क्या? नहीं, आईआईटी में डुअल डिग्री है, आईआईटी में एम फार्मेसी, आईआईटी में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, आईआईटी में एमएससी इकोनॉमिक्स भी है। उसके बाद में आईसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, हिंदुस्तान में 7 इंस्टीट्यूट, इस 7 इंस्टीट्यूट में सीट्स है, इंडेक्स कैपेसिटी कम से कम 1640। आईसर में अगर एडमिशन लेना चाहते तो इसको 3 रास्ते सॉरी। पहला जो रास्ता है 25% एडमिशन जो मिलता है वो है केवीपीआई के बेस के ऊपर 25%। अगर 11-12 में अगर केवीपीआई एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, अगर काउंसिलिंग में अगर सिलेक्शन होता है तो आपको 25% एडमिशन मिलता है। उसके बाद में 25% एडमिशन जो है जेई एडवांस के ऊपर। लेकिन जेई एडवांस जो है ऑल इंडिया रैंक में अगर 10,000 के अंदर आता है उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है। और 50 अगर ये सोचो, अगर आईसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च में अगर ऑल इंडिया रैंक 10,000 के अंदर अगर केवीपीआई के बेस के ऊपर अगर एडमिशन मिलता है तो वो इंस्टीट्यूट क्या लेवल के होंगे ये सोचना जरूरी है। लेकिन 50% जो एडमिशन है वो सीबीएसई सेकेंडरी स्कूल के बोर्ड के बेस के ऊपर है। उसके बाद में उसके आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, अगर वो टेस्ट देते हैं, क्वालिफाई होते हैं अगर वो, लेकिन वो टेस्ट के वास्ते 4 सब्जेक्ट कंपल्सरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। अगर 12वीं में आपका बायो नहीं है या मैथ नहीं है तो भी आप वो आईसर के एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। अगर ये टेस्ट देने के बाद क्वालिफाई होते तो अपनों को आईसर में एडमिशन मिलता है। आईसर में एडमिशन लेने के बाद आपको डुअल डिग्री को एडमिशन मिलेगा, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस। उसमें फर्स्ट ईयर को 4 सब्जेक्ट कंपल्सरी थे। आपने को कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही हिसाब से अपने को अपॉर्चुनिटी, उसमें 4 साल का एजुकेशन लेना है, फिर वहां से पास आउट होना, आप रिसर्च में जा सकते हैं। तीसरा जो है आईसर जो हिंदुस्तान में 7 जगह, एक है मोहाली, कलकत्ता, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, तिरुपति और उड़ीसा। आईसर का जो टेस्ट इस साल से एडमिशन प्रोसेस करने वाले कलकत्ता, उसका वेबसाइट है aiser.admission.in। ये वेबसाइट पे जाने के बाद उसके ऊपर सिलेबस भी है, उसका टाइम शेड्यूल है, उसका कौन से तारीख को फॉर्म निकलने वाला है, वो सब उसमें टाइम शेड्यूल दिया हुआ रहता है। अगर जानना चाहते हो तो आईसर के वेबसाइट पे aiser.admission.in ये वेबसाइट है, उसके ऊपर ये होगा आईसर के बारे में। उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट है IIST बोलो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये हिंदुस्तान में एक ही है। ये इसके जो कुलपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे। जब इसरो के अंदर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट आए, इसमें 3 ब्रांचेस है। पहली जो ब्रांच है उसमें बीटेक अभ्यासक्रम है, एमएनएक्स इंजीनियरिंग। एमएनएक्स बोलो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एएनटीसी, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। और ये 4 ब्रांच मिला के एक ब्रांच है एमएनएक्स इंजीनियरिंग।
तो जो सैटेलाइट जो उपग्रह भेजते हैं उसका रिमोट सोर्सिंग का कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में ये एजुकेशन है। उसके बाद में एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग बोले तो जो अपन उपग्रह भेजते स्पेस के ऊपर वो किस तरीके से भेजना पड़ता है, उसका पेस्ट कैसा तैयार करने का, उसका रिलेटेड वो एजुकेशन है, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद में फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस बोले तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, रेडियो फिजिक्स और साइंस, और उसमें एक पार्ट आता है एस्ट्रोलॉजिस्ट। अब एस्ट्रोलॉजिस्ट बोले तो भविष्य शास्त्र बोलते हैं उसको, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि ज्योतिष शास्त्र क्या भविष्य शास्त्र के इसके क्या रिलेटेड, क्या उसका संबंध है? सही बोलो तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स बोलो तो खगोल शास्त्र, ग्रह ताऱ्यांचा अभ्यास करना, और बोलो तो पृथ्वी का स्टडी करना। और एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलो तो जब चंद्रयान 2019 में भेजा, लेकिन उसका प्लानिंग था 2012 में किया गया कि 2019 में अपने को चंद्रयान भेजना है। उसके बाद में कौन से साल को, कौन से महीने को, कौन से तारीख को, कौन से तिथि को, कौन से नक्षत्र को और कहां से भेजना है, कौन से टाइमिंग से भेजना है, उसका रिलेटेड बोलो तो एस्ट्रोलॉजिस्ट का उसमें पार्ट आता है। वो हिसाब से वो ब्रांच है। लेकिन जो बीटेक अभ्यासक्रम जो है एविनिक्स और एरोस्पेस में 60 सीट है, 60, और फिजिकल साइंस के लिए 20 सीट है, वो एमटेक डुअल डिग्री कोर्सेस है। अगर यह एडमिशन लेना चाहते हैं, जब जेई एडवांस का फॉर्म निकलता है, उसमें का जेई एडवांस का तारीख आने के बाद उसका हॉल टिकट आता है, जब आईएसडी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपनों को जब एडवांस का रिजल्ट लगने के बाद वो ऑल इंडिया रैंक के अनुसार अपनों को काउंसलिंग को बुलाया जाता है। काउंसलिंग होने के बाद आपको अपना एडमिशन मिलता है। लेकिन एडमिशन लेते समय वहां कंफर्म होता है तो आपको 5 साल का बॉन्ड करके देना पड़ता है। 5 साल का बॉन्ड होने के बाद वहां आप लोगों को इसरो में 5 साल काम करना, साइंटिस्ट बोल के काम करना कंपल्सरी। उसके बाद में दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये पूरे इंडिया में नंबर 1 है और पूरे वर्ल्ड में 68 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। यहाँ भी 2015 से यूजी कोर्सेज स्टार्ट हो चुका है, बैचलर ऑफ साइंस। IISc में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने को इसमें 3 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है KVPY, दूसरा रास्ता है वो है जेई एडवांस, और तीसरा रास्ता है नीट के स्कोर के बेस के ऊपर। लेकिन 12वीं में तो इसमें कंपलसरी होना जरूरी है। अभी उसका फॉर्म निकल चुका है, 30 अप्रैल उसकी लास्ट तारीख है। उसके बाद में जब इसका नीट का रिजल्ट लगने के बाद, एडवांस का रिजल्ट लगने के बाद, जिस बच्चों ने, जिस स्टूडेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जब उसका रिजल्ट उसको अपलोड करना पड़ता है। अपलोड होने के बाद उसको ऑल इंडिया रैंक थ्रू, जेई का जो है, KVPY का है या नीट का स्कोर है, वो ऑल इंडिया रैंक के थ्रू अपने को काउंसलिंग के वास्ते बुलाया जाता है। अगर काउंसलिंग में अगर सिलेक्शन होता है तो अपने को एडमिशन मिल सकता है। वहां सिर्फ 120 सीट्स है। ये होगा IISc बेंगलोर। उसके बाद में वो है NIT। अगर NIT देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 31, बोलो तो 31 NIT है। उसके बाद में ट्रिपल IIT है, ट्रिपल IIT इंडियन इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 4 इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि जो जेई मेंस के बेस के ऊपर एडमिशन मिलता है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि जो जेई मेंस के एडमिशन मिलता है। कुल मिला के जो इंस्टीट्यूट है टोटल 105 है, 105। उसमें इंडेक्स कैपेसिटी देखा जाए लगभग 30,000 के लगभग है। अगर इसमें आप बहुत सारे बच्चे ऐसे कि महाराष्ट्र की मेंटालिटी ऐसी है कि मेरे को महाराष्ट्र में चाहिए, ये नजदीक होना जरूरी है, लेकिन ये मेंटालिटी आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। अगर जहां भी अगर नेशनल इंस्टीट्यूट मिलती है तो आपने को जाना जरूरी है। वहां से एजुकेशन जो मिलता है तो टॉप लेवल होता है, क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। फिर उसके बाद में बाहर गिरते हैं तो आप लोग को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। लेकिन ये ना महाराष्ट्र में VNIT, विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर। उसके बाद में ट्रिपल IIT, एक है नागपुर में और दूसरा है पुणे में। उसके बाद में ICT है, ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, एक है बॉम्बे में, दूसरा है जालना में और तीसरा है भुवनेश्वर में। उसके बाद में EIT आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे,
लेकिन जिस बच्चे के पेरेंट्स एक सर्विस में है या डिफेंस में है, उनको बच्चे को एडमिशन AIT में मिलेगा, ये पुणे में है। उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट है वो है NILET, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट, ये औरंगाबाद में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के थ्रू ये इंस्टीट्यूट आता है। यहाँ जो है अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसको आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन क्या जेई का मेंस का जो रिजल्ट आता है, अब जो पहले एग्जाम का जो रिजल्ट आया, मेरे को बहुत सारे फोन आए बच्चे के, सर मेरे को 90 परसेंटाइल मिले, कोई बोलता 95 परसेंटाइल मिले, मेरे को पेरेंट्स का फोन आया तो मेरे को 98 परसेंटाइल मिले। इसमें क्या रहता है कि बच्चे भी फॉर्म में रहते हैं और उसके पेरेंट्स भी ज्यादा फॉर्म में रहते हैं कि परसेंटाइल ज्यादा आ गए करके। वो तो एडवांस स्केल बैठने के लिए क्वालिफाई होगा, ये तो 101% बात है। लेकिन परसेंटाइल कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है। अगर ऑल इंडिया रैंक अगर 30,000 का अंदर होता है तो अपने को NIT मिल सकता है, अन्यथा नहीं तो आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जेई मेंस के बेस के ऊपर 0 परसेंटाइल भी अगर नंबर लाते तो अपने के 0 परसेंटाइल में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ये है जेई मेंस के बेस, एडवांस और मेंस के बेस के जेई एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड। अब आता है नीट एग्जाम। अगर नीट एग्जाम देखा जाए, उसके 1 जुलाई को एंट्रेंस एग्जाम है, 1 अगस्त को, अभी फॉर्म आना बाकी है। मैं बच्चों को पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि मेरे को नीट देना और MBBS मेडिकल फील्ड में जाना है। अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो MBBS करना चाहते हैं तो MBBS काय के वास्ते करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, MBBS होने के बाद आपको क्या करना चाहते हैं। कोई नहीं, बस मेरे को पापा ने बोला या पेरेंट ने बोला डॉक्टर होना है। लेकिन डॉक्टर 2 तरीके होते हैं, कि जानवर का और आदमी का, मनुष्य का। 2 तरीके डॉक्टर नीट के थ्रू ही होते हैं। लेकिन अगर MBBS करना चाहते तो उसका टारगेट क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है या खुद का हॉस्पिटल डालना है या फिर गवर्नमेंट जॉब करना है। मैं बच्चों को पूछता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब करना है या आपको जन सेवा करना है या देश के लिए काम करना है। अगर ये सवाल पूछे तो एक भी सवाल बताता नहीं, कुछ में उसमें आता नहीं। अगर सर बोले आप तुम कौन बोलेंगे, जन सेवा मालूम है, हॉस्पिटल मालूम है, लेकिन देश के लिए आप कैसा काम कर सकते हैं। देश के लिए काम ऐसा कर सकते हैं, ICMR है, अगर पूछा जाए तो किसको पता नहीं। अब कोविड की वजह से ICMR अपने को मालूम गिर रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है पूरा इंडिया का पूरा मेन डिपार्टमेंट है, उसके अंडरटेकिंग मेडिकल इंडस्ट्री आती है। उसके बाद में ICMR के थ्रू अपने को वायरोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट मालूम गिरा जो पुणे में है। ICMR के अंतर्गत हिंदुस्तान में कम से कम 32 ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है कि उसमें जाने के लिए अपने को मेडिकल डॉक्टरेट डिग्री होना जरूरी है, PG होना जरूरी है। तो अपन वहाँ देश के लिए अपन कुछ रिसर्च कर सकते हैं, देश के लिए अपन कुछ काम कर सकते हैं। फिर ऐसा क्यों टारगेट रखते नहीं है? टारगेट रखने तो ऐसा रखो, या फिर IMS एग्जाम देने के टारगेट रखो, इंडियन मेडिकल सर्विसेज अगर देते तो अपन पूरा देश का कंट्रोल मेडिकल इंडस्ट्री का अपन हाथ में रख सकते हैं। टारगेट ऐसा रखना जरूरी है। लेकिन अगर MBBS करना चाहते तो मैं बच्चों को पूछता हूँ, आपको MBBS करना है तो कहाँ से करना है। बहुत सारे बच्चे बताते हैं या पेरेंट्स बताते हैं, क्यों जहां नंबर लगेगा वहां करने का है। मेरे को जहां नंबर लगना है तो वहां करना है। तो फिर मैं पूछता हूँ, फिर बच्चे बोलता है मेरे को जहां नंबर लगाता हूँ। मैं बच्चों को पूछता हूँ आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके माताजी क्या करते हैं। अब ये सवाल पूछने का वजह क्या है, अभी आगे समझ में आएगा तुमको। नीट एग्जाम जो है तो पूरे हिंदुस्तान में 85% एडमिशन जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पूरा 85% एडमिशन नीट के थ्रू होता है। और डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन पूरा 100% ऑल इंडिया लेवल का नीट के बेस के ऊपर होता है। पूरे इंडिया में अगर देखा जाए 96,000 MBBS की सीट्स है। अपन इंडिया का देखेंगे नहीं, हिंदुस्तान का देखेंगे, लेकिन अपन महाराष्ट्र का सोचेंगे। महाराष्ट्र में MBBS के जो सीट्स है, GMC बोले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कम से कम 4,450 सीट्स है। अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, नीट में 720 में कम से कम 500, इस 2020 का कट ऑफ देखा जाए ओपन कैटेगरी 571 पे क्लोज हुआ। अगर 571 मार्क लाते हैं या प्लस आते हैं तो अपने को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो है
1,20,000। 1,20,000। अगर कैटेगरी का बच्चा SC/ST तो उसका जो है उसमें कम से कम 20,000 में एडमिशन होता है। ओबीसी कैटेगरी का ओबीसी तो 50% उसको डिस्काउंट मिलता है। EWS से तो 50% डिस्काउंट में स्कॉलरशिप मिलता है। अगर गवर्नमेंट में नंबर नहीं लगता है तो वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसके सीट से कम 3,000 महाराष्ट्र में। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज की फीस है कम से कम 6.5 लाख से तो 16,60,000 तक। 6.5 लाख धुलिया के कॉलेज की फीस है, और सब में ज्यादा फी है वो डहानू का पालघर कॉलेज जो है, वहां का फीस 16,60,000 है। और जेमतम जो बीच में का कॉलेज है, पुणे का जो कॉलेज है उसमें 13 लाख है। आपका बॉम्बे का कॉलेज है सोमैया का, वहां पर 11 लाख फीस है। उसके बाद में तेरना का फीस जो है तो 7 लाख है। बहुत सारे कॉलेज इस बेस के ऊपर जो फीस स्ट्रक्चर है इस लेवल का है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए वहां 28 सीट्स है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में 720 में से कम इस साल का जो कट ऑफ रखा था 141, 141 अगर मार्क ले तो आपने को एडमिशन मिल सकता है। उसका मतलब ऐसा है कि नीट में 720 में से कम 141 अगर मार्क लेते हैं तो आप नीट क्वालिफाई है, आप मेडिकल ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन से? DY पाटिल भारतीय विद्यापीठ, कृष्णा मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कराड, दत्ता मेडिकल यूनिवर्सिटी वर्धा, MGM महात्मा गांधी मिशन मेडिकल यूनिवर्सिटी मुंबई और औरंगाबाद, और प्रवरा रूरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। प्रवरा का जो फीस है 14,60,000, 50,000। उसके बाद में DY पाटिल बॉम्बे का फीस है 25,75,000। उसके बाद में DY पाटिल बॉम्बे का फीस है 26 लाख, और MGM का फीस है 20 लाख। यहाँ कोई भी स्कॉलरशिप मिलती नहीं, कुछ भी नहीं है। अब अगर इसमें से कम मार्क में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, कम पैसे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एम्स और जिपमर। एम्स का सीट जो है 2007 सीट है और जिपमर का 200 सीट है। अगर एम्स में देखा जाए 7 सीट अपने नहीं है, 7 NRI कोटे के हैं, 2000 सीट अपने इंडिया के लिए है, और 200 सीट जिपमर के वहां भी इंडिया के लिए है। कुल मिला के 1400 सीट हो गए। 1400 में से अगर देखा जाए नीट 720 में से कम आपको 690 के आगे नंबर लाना जरूरी है, 700 के लगभग, तो आप लोग को एम्स में एडमिशन मिलता है। लेकिन मार्क कोई मायने नहीं रखता। सही बोले तो आपको ऑल इंडिया रैंक अगर 2022 के अंदर आता है तो आप लोग को एम्स मिल सकता है पहली बार। अगर दिल्ली एम्स चाहते हैं तो उसमें सीट से कम 100, फिर आपका ऑल इंडिया रैंक आना जरूरी है 100, क्योंकि एम्स की फीस कितना है? सिर्फ 5,000 रुपए। SC/ST कैटेगरी है तो उसमें फ्री ऑफ चार्ज उसको एजुकेशन है। जिपमर का फीस है 14,000 के लगभग है। ये इंडेक्स कैपेसिटी फीस स्ट्रक्चर बताने की वजह क्या है, उसका मतलब क्या है? मैंने पूछा था कि आप पेरेंट्स को पूछता हो कि जहां नंबर लगा वहां करना की जाएंगे, लेकिन आपकी फी भरने की कैपेसिटी उतनी है क्या, वो पहले देखना जरूरी है। इंडेक्स कैपेसिटी इतनी इसके वास्ते बताया, अगर वहां नंबर आप लोगों को जाना है, वहां का इंडेक्स कैपेसिटी देखा जाए तो वहां MBBS को एडमिशन लेना चाहते तो आपको नीट का एग्जाम का ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहली बात मैं क्लियर बता रहा हूँ, स्टूडेंट को मैं क्लियर ही बताता हूँ। नीट का प्रैक्टिस करते समय फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क का अगर क्वेश्चन पेपर है, 100 क्वेश्चन से 100 मार्क है, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर सवाल सॉल्व कर देते हैं, लेकिन पेपर चेक करने के बाद आपका एक सवाल गलत होता है और 1 मार्क कम हो जाता है, अपने को मार्क मिलते हैं 99 मार्क मिलने के बाद खुशी नहीं मनाने का। वहां 1 मार्क कहाँ कम होगा, एक सवाल कहाँ अपनी गलती खा गई, वो हर एग्जाम में अपने को गलती सुधारना है। अगर गलती सुधारते हैं तो हर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छा पेपर छुड़ा सकते हैं। दूसरी बात, जो सवाल का आंसर जो आता है ABCD, आंसर के 10 सवाल तैयार करने की कैपेसिटी अपने में होना जरूरी, तो ही आप एक एंट्रेंस एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैं क्लियर बता दूं, अगर AFM से एडमिशन लेना चाहते हैं
तो एएफएमसी में भी एडमिशन 140 सीट्स हैं, लेकिन उसकी प्रोसेस जो है वहाँ एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन करना है। एएफएमसी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें से कम सिर्फ 1200 से 1300 बच्चे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट होने के बाद उनका एक इंट्रेंस एग्जाम होता है 80 मार्क का, उसमें से सिलेक्शन होने का तो उसका बॉडी लैंग्वेज का उसका फिटनेस चेक किया जाता है, फिर उसमें से सिलेक्शन लिस्ट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद वो बच्चों का एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर वहां एडमिशन मिलता है तो अपने को वहां बॉन्ड करके देना पड़ता है 100 रुपीज के ऊपर। 100 रुपीज का बॉन्ड रहता है, उसके ऊपर अफिडेविट करके देना पड़ता है। वहां से एमबीबीएस पास आउट होने के बाद आपको 7 साल डिफेंस में सर्विस करना कंपल्सरी है। अगर एमबीबीएस पास आउट होने के बाद अगर आपका ख्याल बदल जाता है कि मेरे को नहीं करने की सर्विस, तो आपको बॉन्ड कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन बॉन्ड कैंसिल करने के नकदी 50 लाख आपको भरना पड़ता है, फिर बॉन्ड कैंसिल हो सकता है। उसमें ये क्लियरिटी है। अगर एमबीबीएस बीडीएस अगर नहीं मिलता है तो नीट के बेस के ऊपर अपने को बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, प्रोथोटिक्स, ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर थेरेपी, उसके बाद में बीएससी नर्सिंग, उसके बाद में बैचलर ऑफ स्पीच एंड हियरिंग लैंग्वेजेस, उसके बाद में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। इतने ब्रांचेस अपने वास्ते खुले हैं। ये होगा नीट के बेस के ऊपर। उसके बाद में सीईटी। सीईटी जो है एमएचटी सीईटी, ये 4 रास्ते इसके लिए। एक है इंजीनियरिंग, दूसरा है बी फार्मेसी, तीसरा है फार्म डी और चौथा है एग्रीकल्चर। ये चार रास्ते सीईटी के बेस के ऊपर खुले। इसमें जो है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके वास्ते अपने को ऑटोनॉमस कॉलेज महाराष्ट्र में 27 है। उसके बाद में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जो है ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से 7 है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, जो पूरे टोटल महाराष्ट्र में 53 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। 53 यूनिवर्सिटीज है, उसमें से 5 यूनिवर्सिटी ऐसे कि वहाँ इंजीनियरिंग को पढ़ाया जाता है, वहाँ इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिलता है। अगर ऑटोनॉमस कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते तो अपने को नीट सीईटी का जो परसेंटाइल है कम से कम 98 के आगे नंबर लाना जरूरी है, या उसका एसएमएल जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जो है आपका कम से कम 5000 के अंदर या 10,000 के अंदर आना जरूरी है, तो ही अपने को ऐसे रेपुटेशन कॉलेज को एडमिशन मिल सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत सारे जन बोलते हैं सर इंजीनियरिंग को स्कोप है क्या? मेरे को सवाल पहला पूछना है कि स्कोप बोले तो क्या? खुद सारे बोलते जॉब, पैसा। कोई सही बात बताता हूँ, पैसे कितने मिलते, स्कोप बोले तो उसको। इंजीनियरिंग को सही बोले तो कल भी, आज भी और परसों भी इंजीनियरिंग को स्कोप है, लेकिन आप क्या क्वालिटी का एजुकेशन लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड इंजीनियरिंग का फ्यूचर है। क्वालिटी एजुकेशन लेते तो इंजीनियरिंग में ज्यादा फ्यूचर है। उसके बाद में फार्मेसी और फार्म डी, इसके वास्ते आप इंजीनियरिंग का करो या पीसीबी का या पीसीएम का सीईटी दो। इंजीनियरिंग या पीसीबी का पीसीएम का सीईटी दो, कोई पीसीबी का पीसीएम का सीईटी देते तो अपने को फार्मेसी में एडमिशन मिल सकता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 साल का है, लेकिन इसमें जो है औषधि निर्मित शास्त्र उसको बोलते हैं, लेकिन फार्म डी जो कोर्स है वो 6 साल का है। 5 साल का एजुकेशन है, 1 साल का इंटर्नशिप है। लेकिन सही बोले तो इसमें अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाले 3 साल में ज्यादा है। इसमें इंडिया में अभी स्कोप नहीं है, लेकिन आने वाले 4 साल में इसको ज्यादा स्कोप है, क्योंकि ये अगर फार्म डी करते हैं तो आने वाला फ्यूचर अपने को क्लिनिकल रिसर्च में अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में R&D में अपने को जो अपॉर्चुनिटी है, जहाँ जिस हॉस्पिटल में 20 बेड का हॉस्पिटल है उसमें ये फार्म डी पोस्ट कंपल्सरी लगने वाले हैं। और आने वाले टाइम में कम से कम इस फार्म डी वालों को प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलने वाली है, क्योंकि डॉक्टर लोगों ने सिर्फ पेशेंट में डायग्नोसिस करने का ट्रीटमेंट ये फार्म डी वाले करने वाले हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर जो है उसमें सीईटी के बेस के ऊपर एडमिशन है। एग्रीकल्चर में बीएससी एग्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में
उद्यान शास्त्र, उसके बाद में फॉरेस्ट्री, फिशरी साइंस, उसके बाद में बीटेक इन द डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन द फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद में एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, और उसके बाद में सिर्फ वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए होम साइंस। ये लेकिन होम साइंस जो तो सिर्फ परभणी कृषि यूनिवर्सिटी में सिर्फ होम साइंस है। इस बेस के ऊपर अपन एडमिशन ले जाना चाहते हैं। इसमें क्लियरिटी करना, इसमें सीईटी का परसेंटाइल प्लस 12वीं का परसेंटाइल, उसमें कुछ परसेंटाइल, अगर सीईटी का परसेंटाइल अगर 90 परसेंटाइल है, 12वीं का परसेंटाइल के 10% उसमें पकड़ते, कंबाइंड उसमें होता है। उसके बाद में अगर आपका पास खेती है, एग्री लैंड है, उसका 7 बार अगर जोड़ते हैं तो उसको 12% उसमें ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास खेती नहीं है, लैंड नहीं है, तो आपने को अगर भूमि का सर्टिफिकेट अगर उसमें निकालते गवर्नमेंट की तरफ से, उसका 12% उसमें आप ज्वाइंट होता है। आपके पास स्काउट का सर्टिफिकेट है, तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, उसके बाद में गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट्स उसके 2 या 5% उसमें 20% और अपने के ऐड होते हैं उसमें। अगर ये सर्टिफिकेट जोड़ते हैं तो ये परसेंटेज जाता है 120 के लगभग जाता है। अगर 120 में अगर आदमी परसेंटाइल आता है तो अपने को टॉप कॉलेज मिल सकता है। फॉर एग्जांपल महात्मा फुले कृषि महाविद्यालय पुणे का कॉलेज 1 नंबर है महाराष्ट्र में, वो अच्छा है। अगर कम परसेंटेज में, कम स्कोर में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑल इंडिया लेवल के इंट्रेंस एग्जाम है, वहां भी आप जा सकते हो। वो एग्जाम देते हैं तो वहां अपने कम परसेंट में आपको एडमिशन मिल सकता है। ये 3 एग्जाम हो गए। उसके अलावा नेक्स्ट नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इसके फॉर्म निकल चुके हैं। इसकी लास्ट तारीख है 30 अप्रैल तारीख है, और उसके एंट्रेंस एग्जाम है 30 जून का एंट्रेंस एग्जाम है। ये एंट्रेंस एग्जाम को भी चारों सब्जेक्ट कंपल्सरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। अगर 12वीं में आपका बायो नहीं है या मैथ नहीं है तो भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई होते हैं तो आपको वाइवा देना पड़ता है। वाइवा देने के बाद अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको एडमिशन मिल सकता है नाइसर में। नाइसर बोलो तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च मुंबई, भुवनेश्वर, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी सेंटर जो है उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। मुंबई जो इंटेक कैपेसिटी 57 से और भुवनेश्वर में 200 सीट्स है। अगर यहाँ आपको एडमिशन मिलता है, अगर आपको यहाँ एडमिशन मिलता है तो आपको एमएससी को इंटीग्रेटेड को एडमिशन मिलता है। अब आप बोलेंगे सर एमएससी करने का समय उधर के कॉलेज में या भुवनेश्वर काय को जाओ, हमारे साटे कॉलेज में करेंगे, कोई बात नहीं, बिंदास करो। लेकिन नाइसर जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बार्क बोले तो भाभानुसंधान ऑटोमेटिक एनर्जी रिसर्च सेंटर और डॉक्टर होमी बाबा रिसर्च सेंटर, ये रिसर्च सेंटर से वो इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन में है। वहाँ के साइंटिस्ट वो बच्चों को पढ़ाने को जाते हैं। अगर वहां से पास आउट होते तो आप लोग को पूरे रिसर्च सेंटर में आप लोग को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। तो ये बेस्ट इंस्टीट्यूट होते नाइसर में अगर एडमिशन मिलता है तो। एक हो गई नेक्स्ट एग्जाम। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ के रिलेटेड है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ चेन्नई। ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंडिया में नंबर 1 है मैथमेटिक्स के लिए। इसकी सेपरेट इंट्रेंस एग्जाम होती है। और दूसरा इंट्रेंस एग्जाम है ISI बोलो तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। ये दोनों भी इंस्टीट्यूट है। अगर आप नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जाम क्वालिफाई है तो अपने को डायरेक्ट एडमिशन वहां मिलता है। अगर नहीं है तो इनका खुद का इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर CMI का इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो आप लोग को BSc इन द मैथमेटिक्स इन द फिजिक्स और BSc इन द मैथमेटिक्स इन कंप्यूटर साइंस में आप लोग को एडमिशन मिलता है। अगर यहाँ से पास आउट होते तो आप लोग को पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। उसके बाद में BSc इन द मैथमेटिक्स से तो कंप्यूटर साइंस, ये जो डेटा एनालिसिस के लिए रिलेटेड डिग्री है, आने वाला फ्यूचर डेटा एनालिसिस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जो दूसरे इंट्रेंस एग्जाम जो मैंने बताई ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, यहाँ अगर सिलेक्शन होता है, अगर यहाँ एडमिशन मिलता है तो आपने को BSc इन द मैथमेटिक्स या BSc इन द स्टैटिस्टिक्स, यहाँ अगर एडमिशन मिलता है तो अपने को महीने को 3000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। 3000 रुपए अपने को प्रोजेक्ट के लिए स्टाइपेंड अलग से मिलता है।
अगर वहां से आप पीजी पास आउट होते हैं, वहां से अगर पीजी पास आउट होते हैं तो अपने को पहले टॉप 5 में अगर आते हैं तो अपने को इंटर्नशिप कहाँ मिलती है? पहली जो मिलती है राष्ट्रपति भवन, उसके बाद में उपराष्ट्रपति भवन, उसके बाद में पीएमओ प्राइम मिनिस्टर कार्यालय, उसके बाद में है फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री, नीति आयोग और आरबीआई। ऐसे इस जगह अपने को इंटर्नशिप को अपने को अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये टॉप लेवल की इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में एनआरटीआई ये 2018 से ये यूनिवर्सिटी है, ये गुजरात में बड़ौदा में। ये जो है यहाँ जो है तो अपने को पहले एप्टीट्यूड देना पड़ती है, लेकिन 12वीं में मैथ होना कंपल्सरी है। वहाँ बीएससी इन द रेलवे ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और बीबीए इन ट्रांसपोर्ट इन द मैनेजमेंट, ये दो ब्रांचेस के लिए उनके एप्टीट्यूड टेस्ट है। और 2020 से इस साल से बीटेक ब्रांच स्टार्ट हो चुका है। एक है बीटेक इन द कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और दूसरा है बीटेक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। दोनों ब्रांच के लिए 30-30 सीट्स है। अगर यहाँ आप लोग को एडमिशन मिलता है, यहाँ 30-30 सीट्स है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जे मेंस के बेस के ऊपर अपने को एडमिशन मिलता है। दूसरा रहा है ये बात नाटा। दूसरी बात यह है नाटा जो है तो आप लोग को आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन मेरे को बहुत सारे जन बच्चे पूछते हैं कि हमको आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करना है, लेकिन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करने के बाद आगे क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी इसकी गारंटी नहीं। क्योंकि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप डिजाइनिंग में जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में अगर करते हैं तो आने वाला फ्यूचर उसमें ज्यादा है। लेकिन इंटीरियर उसके साथ में अगर इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं तो उसके बाद में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आने वाले अपॉर्चुनिटी उसमें अच्छा है। उसके बाद में है यूसीट और एनआईटी। यूसीट और एनआईटी का सही बात बोलो तो उसके फॉर्म, उसके एग्जाम भी हो गई है, अभी उसका रिजल्ट आने का बाकी है। अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है उसका, बोलो तो उसकी एग्जाम हो गई, लेकिन अगले साल आप दे सकते हैं यूसीट। लेकिन अब यूसीट, आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजाइनिंग, वो एग्जाम अगर देते हैं तो अपने को कायमी करियर करना चाहते हैं, एक तो फैशन डिजाइनिंग, अपैरल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग या और इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग में करियर करना चाहते हो, वो पहले सोच लो, फिर उसके बाद में यूसीटी एनआईटी, लेकिन टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। लेकिन बात ये नहीं है कि बाद में अगर 12वीं के बाद में भी अगर अपना वहां एडमिशन नहीं होता, लेकिन हाउ इन ग्रेजुएशन के बाद में यूसीटी और एनआईटी का एग्जाम दे सकते हैं। पीजी के लिए आप बीए, बीकॉम, बीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद यूसीट, आईआईटी दे सकते हैं। उसके बाद में एक और इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइनिंग बोल के, राजस्थान में जयपुर में। वहां भी एक इंस्टीट्यूट के अभी एग्जाम शायद उसके एप्लीकेशन निकल चुके, वहां का एडमिशन मिलता है, वहां से पास आउट होने का अपने को मिलने वाली अपॉर्चुनिटी अच्छी। ये डिजाइन के बारे में आता। उसके बाद में नीट के फॉर्म निकल चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, ये महाराष्ट्र भारत सरकार वस्त्रोद्योग मंत्रालय का अंडरटेकिंग आता है। अगर वहां से एडमिशन मिलता है, वो बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है, हिंदुस्तान में 2-4 जगह है। उसके बाद में और एक सीईटी है, IMU, इंडियन मरीटाइन यूनिवर्सिटी चेन्नई। अगर इसका इंट्रेंस एग्जाम देते, सीईटी देते हैं, उसके बाद में अपने को इसका जो इंस्टीट्यूट है कलकत्ता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोचीन, मुंबई, अगर यहाँ एडमिशन मिलता है, मरीन इंजीनियरिंग, मरीन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, मरीन ओशनोग्राफी इंजीनियरिंग, बीएससी नॉटिकल साइंस, इस ब्रांचेस के लिए अपने को एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा इंदिरा गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट ऑफ द देहरादून, रायबरेली, यहाँ बीएससी इन द एविएशन कम सीपीएल नाम का कोर्स है। अगर ये कोर्स करते हैं तो एविएशन फील्ड में आप भी जा सकते हैं, या उसके साथ में अगर सीपीएल में अगर सिलेक्शन होता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपका सिलेक्शन होता है, तो अपने को कमर्शियल पायलट का अपने को एजुकेशन मिल सकता है, पायलट भी बन सकते हैं। मेरे को एक बात बताने के रहे, एक है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का जो कॉलेज है,
जो जेईई मेंस के बेस के ऊपर अपने का सिलेक्शन हो सकता है इंजीनियरिंग के लिए, वो है इंडियन आर्मी के जो कॉलेज है वो हैदराबाद और पुणे में, और इंडियन नेवी का कॉलेज है एक कोचिन गोवा और दूसरा है लोनावाला। यहाँ अगर मरीन इंजीनियरिंग, मरीन आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग या फिर उसके बाद में इंडियन आर्मी का, लेकिन उसका प्रोसेस है जेईई मेंस का स्कोर, उसके बाद में एसएसबी का इंटरव्यू, उसके बाद में एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। अगर सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को 12 साल का बॉन्ड करके देना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ मेल के लिए, बच्चे लड़कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अभी आगा इंटर एग्जाम के रिलेटेड, उसके अलावा अपने को मैं और एक ज्यादा अपॉर्चुनिटी दूं और कुछ करियर के बारे में बताता हूँ। कुछ ऐसा करियर है कि उसके बाद में अपने को वो अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत सारे बच्चों को मैं बताता हूँ कि आप बीएससी करिए। अगर बीएससी, बहुत सारे बोलते हैं कि बीएससी के बाद में क्या एमएससी करना, बीएड करना, टीचर होना है, या फिर कैड देना है, एमबीए करना है। लेकिन सही बोलो तो बीएससी सिर्फ ऑप्शंस नहीं, सही बोलो तो। लेकिन बीएससी में एडमिशन लेने के बाद टारगेट ये रखना है कि मेरे को पीजी कहाँ करना है। आईआईएससी में करना है, आईआईटी में करना है, आईसर में करना है, नाइसर में करना है, उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ब्रेन रिसर्च में करना है, एनसीएल में करना है, आयोका में करना है। बहुत सारे ऐसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां जाके अपने को पीजी करना है। लेकिन वहां जाने के लिए अपने को कौन से इंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है? वो है पहली बात तो गेट, दूसरा है जैम, तीसरा है जस्ट, चौथा है टीएफआर लाइफ साइंस। अगर एग्जाम देते क्वालिफाई होते हैं तो अपने को वहां एडमिशन मिल सकता है। लेकिन ऑल इंडिया रैंक अपना अच्छा न जरूरी है तो अपने को एडमिशन मिल सकता है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाद में अपने को एक तो डीआरडीओ, इसरो में अपने को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या रिसर्च फील्ड में अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये ही होगा। बहुत सारे जन बच्चे मेरे को पूछते हैं सर फॉरेंसिक साइंस में करियर करना चाहते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस में अगर जाना चाहते हैं तो प्लेन बीएससी फॉरेंसिक साइंस महाराष्ट्र में सिर्फ गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है, एक मुंबई में है जो साइंस इंस्टीट्यूट में जो पोर्ट पे है वहां पे है, दूसरा है औरंगाबाद में, वहां भी साइंस इंस्टीट्यूट है, उसके अंडरटेकिंग आता है, और तीसरा है नागपुर में जो साइंस इंस्टीट्यूट जो अंडरटेकिंग आता है, वहां फॉरेंसिक साइंस है। लेकिन फॉरेंसिक साइंस अगर करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मत करो, प्लेन बीएससी करने के बाद फॉरेंसिक साइंस में जाते तो अच्छा रहेगा। लेकिन फॉरेंसिक साइंस जाने के बाद कंपटीशन ज्यादा बढ़ती है, जाने वाला फ्यूचर क्या है उसको पता नहीं, तो उसके वास्ते तुम फिर बाद में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन करिए, फिर बाद में आप लोग को फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में आप अलग अलग तरीके से करियर कर सकते हैं। उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटी है वो गुजरात में, बहुत सारे जन बोलते हैं मेरे को रॉ में जाना है, मेरे को आईबी में जाना है, आईबी बोलते इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है, कोई बोलता है मेरे को सीआईडी में जाना है, कोई बोलता है मेरे को डिफेंस में जाना है। अगर आपको डायरेक्ट अगर वहां जाना तो अपने को डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती, लेकिन होम मिनिस्टर के अंडरटेकिंग जो आरएसयू यूनिवर्सिटी है, आरएसयू बोले तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो गुजरात में गांधीनगर में है, वहां जो है बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है। अगर वहां से एडमिशन लेते हैं, वहां से अगर पास आउट होते हैं तो वहां की यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके वहां के बच्चे 99% बच्चे क्रैक करते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद में आईपीएस होते, फिर बाद में रॉ, सीबीआई, सीआईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाते हैं। उसके बाद में एक वहाँ बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, वहां से अगर कोर्स करते हैं तो अभी आप पुलिस डिपार्टमेंट में या होम मिनिस्ट्री के अंडरटेकिंग जा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस वहां है कि रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के अंडरटेकिंग की बहुत सारे अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकते हैं। अब ये होगा इसके इंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड और अदर करियर के रिलेटेड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करियर ऐसा चॉइस करना चाहिए। आरएसयू का रिपीट जो है ये गुजरात में क्वेश्चन आए करके मैं रिपीट कर रहा हूँ। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी ये गांधीनगर में है, ये होम मिनिस्टर के अंडरटेकिंग आता है। यहाँ अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ से 1 महीने का कोर्स है तो पीएचडी तक वहाँ कोर्स है। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का कोर्स अगर देखा जाए, फॉरेंसिक साइंस फोटोग्राफी वहाँ कोर्स है।
आप फॉरेंसिक साइंस फोटोग्राफी बोलो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसमें मिलती है। होम मिनिस्ट्री में आप जा सकते हैं। वहां जो है 2 डिग्री यूजी कोर्सेस है, एक है बैचलर ऑफ आर्ट्स पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोर्सेस है। लेकिन उसके वास्ते जेईई मेंस या गुजरात के सीईटी देना जरूरी है, तो आपको वहां एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट के बाद इंटरनल और इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर के वो एग्जाम देते हैं बच्चे, फिर डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। क्योंकि होम मिनिस्ट्री भारत सरकार जो अमित शाह जो अपने मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री अंडरटेकिंग जो डिपार्टमेंट आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के, वहां आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये आरओसी के रिलेटेड बताया। उसके अलावा गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वो भी वर्ल्ड में नंबर 1 है, वहां भी पोस्ट ग्रेजुएशन के एजुकेशन आपको मिल सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहां से। हाँ, तो अपना पार्ट रहा था कि आने वाला फ्यूचर का में वो सोच के चलो। अगर साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आने वाला 10 साल में है करियर जो है वो सही बोलो तो 7 से 8 रास्ते आने वाले। क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हर टाइम बोलते थे कि सर आप रिसर्च में जाओ, क्योंकि आने वाला फ्यूचर है रिसर्च में है। आने वाला फ्यूचर जो है वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में है। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग को बीटेक इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएनटीसी, मेकाट्रॉनिक्स अगर करते हैं तो अपने को रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में आने वाला फ्यूचर जो है वो है इसमें साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है तो बीटेक इंजीनियरिंग कंप्यूटर होने के बाद साइबर सिक्योरिटी कर सकते हैं। आने वाला फ्यूचर जो है तो नैनो टेक्नोलॉजी का, अगर नैनो का पढ़ाई करना चाहता है तो नैनो का एजुकेशन, नैनो साइंस बोले तो ये हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी में, एक है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर और दूसरा है नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव। वहां भी 12वीं के बेस के ऊपर इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वहां बेस के ऊपर एडमिशन होता है। उसके बाद में आने वाला फ्यूचर है ज्ञान और टेक्नोलॉजी। उसके बाद में आने वाला फ्यूचर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप कहां से भी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करिए या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करिए, उसके बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद में डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट का मैं एक क्लियर, डेटा साइंटिस्ट वो है कि एक मेरे जो 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं अभी किनका इंजीनियरिंग चालू है, अभी बीटेक इंजीनियरिंग को 2 सेकंड ईयर को, एक बॉम्बे में विजेटा में है, दूसरा एक आईआईटी बॉम्बे में है, तीसरा जो पीआईसीटी पुणे में है। आईआईटी मद्रास 2020 से उन्होंने बीएससी इन द डेटा साइंटिस्ट ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज स्टार्ट कर चुके हैं। डेटा साइंटिस्ट जो है उनका पहला इंट्रेंस एग्जाम देना, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका इंट्रेंस एग्जाम होता है। इंट्रेंस एग्जाम होने के बाद सिलेक्शन होता है तो आप लोगों को वहां एडमिशन मिल सकता है। एट ए टाइम आप 2 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, वो घर बैठे आप लोगों को डिग्री है। तो अगर वो आपका बीटेक का डिग्री चालू है, उसके बाद में अपने को इसमें भी जा सकते काय में ऑनलाइन आईआईटी डिग्री घर बैठे। वीकली सिर्फ 10 घंटे आपको देना है ऑनलाइन। मेरे पास 4-5 स्टूडेंट है, वहां उनका एडमिशन मिल चुका है। इस बेस के ऊपर आप जा सकते हैं। उसके बाद में एक रास्ते नहीं, कम से कम 10 रास्ते चॉइस करके रखिए कि एक ने 10 ऑप्शन अपने निकलना चाहिए। या वो करियर के बारे में, या अपने को तो अभी अपन को एंट्री करना है, एग्जाम दे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में को अपने को आप वहां एडमिशन लेना है। सही बोलो तो एग्जाम लेने वाला डिपार्टमेंट अलग है, एडमिशन करने वाला प्रोसेस अलग है। मैं क्लियरिटी कर देता हूँ। पहली बात जो है तो आप लोग जेई दे के एडवांस क्वालिफाई हो गए, उसके बाद में जेई मेंस दे गए, उसका परसेंटेज अच्छा हुआ, फिर एडमिशन कैसा लेना है। तो एडवांस के बेस के ऊपर जो आईआईटी और एनआईटी में जोसा के थ्रू एडमिशन होता है। ये एडमिशन प्रोसेस जोसा के थ्रू होता है। जोसा के लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर पहले आईआईटी का एडमिशन होता है, उसके बाद में एनआईटी का। लेकिन आईआईटी और एनआईटी के कम से कम 6 राउंड होते हैं एडमिशन के, 6 राउंड। उसके बाद में जो सीट्स खाली होते हैं उसमें से फिर सेकंड चैनल जो रहता है CSAT के चैनल हो जाते हैं। फिर CSAT का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है,
फिर उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, फिर बाद में ऑप्शन देना पड़ता है जो IIT NIT तो आप NIT में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा जो रास्ता है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, सुभाष चंद्र बोस टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में एक वुमेन्स इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली मैनेजमेंट। वहां जो 4 कॉलेजेस है उसको जैक काउंसिलिंग बोलते हैं, उसको जॉब काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उनका सेपरेट प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस है। उसके बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि CS करना है, IT करना है। CS में अगर जब जो IIIT हैदराबाद है, इक्वलेंट टू IIT है, वो प्राइवेट है सेगमेंट, उनका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद में उसका JMS के ऊपर एडमिशन होता है, उसका काउंसलिंग उनका सेपरेट होता है। ये इंजीनियरिंग के वास्ते है। अगर आपको महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में जो है तो CET का जो चैनल है उसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है, वो बेस के ऊपर अपने को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपने को ऑप्शन देना है, वो हिसाब से अपने को आगे जा सकते हैं। ये होगा इंजीनियरिंग का। दूसरा जो रास्ता है मेडिकल का, मेडिकल के रास्ते कम से कम 3 से 4 रास्ते। पहला रास्ता, अगर अच्छे नंबर आते हैं तो पहला रजिस्ट्रेशन आपको MCC करना पड़ता है। MCC मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का जो है, उसमें जो है अगर आपको एम्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली मेडिकल कॉलेज, उसके बाद में 2-3 कॉलेजेस है, वाराणसी का जो यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज है वो, और दूसरा है एम्स जिपमर, इसमें एडमिशन, और AFMC इसमें एडमिशन लेना, उसको अगर टिक करते हैं तो उसके बाद में आप जा सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ओपन कैटेगरी ले 10,000 रुपए डिपॉजिट होता है, 1,000 रुपए फी होती है। 2020 का बता रहा हूं मैं। अगर नंबर कम है उसके बाद में डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीम यूनिवर्सिटी, उसमें मैंने डीम यूनिवर्सिटी में एक बात बताना भूल गया मैं। सिम्बायोसिस इस साल से 2020 से सिम्बायोसिस में MBBS कोर्स चालू होगा, उसकी 10 लाख है फीस है, लेकिन वो लड़कियों के लिए फीस है। इसका कटअप इस साल का कटअप गया है, कम से कम 522 तक कटअप गया है इसका। लेकिन डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको 2 लाख और गवर्नमेंट के 10,000, ऐसे 2,10,000 रुपए अपने को रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट करना पड़ता है। सब डिपॉजिट शब्द मैंने यूज करा है, वो रखते नहीं, डिपॉजिट रखते। वो एडमिशन होने के बाद अगर आपने एडमिशन ले लिया तो 2,10,000 रुपए वापस आते हैं। अगर आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला आपको तो भी पैसे वापस आते हैं। लेकिन अगर आपको एडमिशन मिला है, पहले टाइम अगर मिला है तो अपग्रेडेशन के लिए अपन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में आपको एडमिशन मिलता है तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर एडमिशन लेते नहीं है तो आपको 2 लाख जो पैसे वो भूल जाना पड़ता है। एडमिशन लेने के बाद आपको पैसे वापस आ जाएंगे। ये होगा MBBS का। महाराष्ट्र में MahaCET का पोर्टल के ऊपर अपने को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तो अपने को मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के लिए अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें महाराष्ट्र में प्रोसेस एक ही टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उसके बाद में एक बार ऑप्शन डालने के बाद में ऑप्शन चॉइस चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पहला प्रोसेस होता है MBBS BDS का ऑप्शन देना है। सेकंड जो होता है BMS BHMS BOMS, इसका ऑप्शन निकलता है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन निकलता है फिजियोथेरेपी से तो BSc नर्सिंग तक उसका ऑप्शन निकलता है। ये महाराष्ट्र का प्रोसेस है। MCC का प्रोसेस है, हर टाइम आप ऑप्शन डाल सकते हैं, उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको तो कंटिन्यू वही रखना पड़ता है। वो बेस के ऊपर अपन कंटिन्यू चॉइस फिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया का भी डाल सकते हैं या महाराष्ट्र का भी डाल सकते हैं। जो महाराष्ट्र के ऑल इंडिया का जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ 15% अपनों को एडमिशन मिलता है। फॉर एग्जांपल JJ में 200 सीट्स है, उसमें 30 जगह MCC भरते हैं। कूपर में जो है 200 सीट्स है, उसमें 30 जगह MCC भरता है, तो वो भी कॉलेज अपन डाल सकते हैं। ये हुआ MBBS का। अगर BMS BHMS BOMS और BSMS जो तमिलनाडु में, साउथ में, केरल में जो डॉक्टरी की डिग्री कोर्स है, इसका 15% का एडमिशन भी आयुष के थ्रू होता है।
उसका वेबसाइट है AACCC.ac.in। इसके अपने को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें भी फीस 10,000 रुपए है, गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट। और डीम्ड लेना चाहते हैं तो अपने को 50,000 रुपए और डिपॉजिट करना पड़ता है। तो डिपॉजिट होने के बाद जैसे मैंने एमसीसी की प्रोसेस बताई, वैसी प्रोसेस ऑल इंडिया आयुष मंत्रालय की जो होती है वो हिसाब से अपने को जा सकते हैं। ये होगा मेडिकल फील्ड का। अब रही बात आईआईएससी बेंगलोर और आईएसटी का। जैसे जैसे आईआईएससी बेंगलोर का रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में उसका जैसा रिजल्ट आया उसमें अपने को अपलोड करना पड़ता है, फिर वो बाद में आईआईएसटी का वैसा है। आईसर का फॉर्म भरते समय अपने को कम से कम ऑप्शन जो पहले डालना पड़ता है, और पहले डालने के बाद में कैसा ऑप्शन डालना है, क्या करना है, पहला आईसर कौन सा अच्छा है, सेकंड ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि आईसर का ऑप्शन देने के बाद अपने को चेंज करके नहीं आता, क्योंकि टॉप मोस्ट पुणे है, सेकंड है कोलकाता, थर्ड है उसके बाद में ये भोपाल है, ऐसे ऑप्शन पहले देना पड़ता है। कुछ आईसर भोपाल में एक इंजीनियरिंग साइंस भी है और इकोनॉमिक्स भी वो भी आप डाल सकते हैं। वो हिसाब से 9 ऑप्शंस होते हैं। लगे तो कुछ को पूछना चाहते मेरे को बाद में फोन करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा ऐसा ऑप्शन देना है, वो हिसाब से आप कर सकते हैं। ये होगा इसका। फार्मेसी का काउंसलिंग अलग तरह से होता है, ऑल इंडिया महाराष्ट्र का फार्मेसी का और फार्मडी का रजिस्ट्रेशन एक ही होता है। उसके बाद में एग्रीकल्चर का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है। सही बोलो तो महाराष्ट्र में कम से कम 6 प्रकार के सीईटी है। एक सवाल आया था इसमें, जब स्कूल में एडमिशन कैसा लेना है, उसके वास्ते अपने को महाराष्ट्र का सीईटी होते है, उसका ऑब्लिक बीएपी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की सीईटी देना पड़ती है। वो सीईटी अगर देते हैं तो अपने को बैचलर ऑफ फाइन में एडमिशन मिल सकता है। ये हो गया एडमिशन प्रोसेस के बद्दल। दूसरी बात डॉक्यूमेंट्स के लिए सिर्फ मैं 3 कैटेगरी के लिए मैं बताऊंगा। जो एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं, तो उन्होंने महाराष्ट्र का जो कास्ट सर्टिफिकेट निकाला उसको वैलिडिटी कंपलसरी है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया रैंक के लिए आपको एडमिशन लेना चाहते हैं, जो ऑल इंडिया रैंक में एम्स हो, जिपमर हो, उसके अलावा आईआईटी हो, एनआईटी हो, आईसर हो, जो ऑल इंडिया लेवल रैंक के जो कॉलेजेस है, अगर वहां एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, तो एडमिशन मिलता है। इसके उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरे पास सातारा का क्या एक लड़की थी, उसका ऑल इंडिया रैंक था एससी कैटेगरी का, 1000 के अंदर था, उसके टॉप लेवल की एनआईटी मिल गई थी त्रिची। जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया, सर ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना जरूरी है, एससी कैटेगरी की थी। उसके पेरेंट्स बोले सर हमको बाबा साहब ने एक ही बताया। मतलब बाबा साहब का मैं आदर करता हूँ, मैं मानता हूँ उनको, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। उन्होंने सोना नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिया और वो फिल करते बराबर उनको आउट कर दिया, उनको एडमिशन प्रोसेस बोला तो ओपन कैटेगरी में डाल दे। अब इतने मेहनत से बच्चा काम, मेहनत पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और सीधे एक छोटे से गलती के वजह से कितना नुकसान हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉम्प्टली रखना जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी, एससी और एसटी कैटेगरी का, पहली बात। दूसरा जो विजेएनटी कैटेगरी जो बच्चे हैं, विजेएनटी, उनके वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना जरूरी है। जो ओपन कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको अगर ईडब्ल्यूएस के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये भी जो फॉर्मेट है ये भी पूरा 1 अप्रैल से अपने को पेरेंट्स को बोलना वो फॉर्मेट निकाल के रखो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कॉल करो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे निकालते हैं। आपको पेरेंट्स को मेरे को बोल सकते हैं, मैं लास्ट में आपका मेरा नंबर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद में जो फिजिकल हैंडीकैप जो है, अगर कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप, उसका भी वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल के लिए हर फील्ड के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम के बेस के ऊपर उसका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन जो मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद में हाजी अली में जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहां होता है, या कोई जो डिपार्टमेंट है वहां जो है, तो जहां भी कोई मेडिकल कॉलेज है वहां से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये आगा इसमें।
वेरिफिकेशन के रिलेटेड। आप ये डॉक्यूमेंटेशन का क्लियर मैंने बता दिया। आप दूसरी बात यह है कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बाद में नंबर देता हूं। Thank you, sir. It was really a great experience to listen to you. You have described so many career options like JEE, NEET in detail. I hope all our friends who are attending this program must have a clear picture of various career options. You might have some questions also in your mind. So now I request my friend Nidhi Sharke to proceed for further question and answer session with Karle sir. Over to you, Nidhi. Thank you, Mansi. It's my great pleasure to proceed with this question answer session. Though we have got many career related questions in chat box, due to time constraints, we will take few of them. Our first question is from Prasanna Natkarni, FYGC Science Division G. He has asked, what are efficient careers in language, business and entrepreneurship in today's time? If he is in science stream and not in art, and he also wants more information about natural language processing and computer linguistics. ओके, लँग्वेज हिंदीमध्ये सांगताय, लँग्वेजेस मध्ये करिअरच्या ऑपॉर्च्युनिटी, तो मराठी बोलू का हिंदी? नाही, मराठी पण चालेल, हिंदी पण, हिंदी. बरं, मला ओके, मला सांगतो आता सायन्सचा विद्यार्थी आहे. हो, आणि तुला लँग्वेजेस मध्ये तुला जायचंय, कुठल्या लँग्वेजेस मध्ये इंटरेस्ट आहे? म्हणजे फॉरेन लँग्वेजेस आणि पर्टिक्युलर लँग्वेजेस, जेवढे लँग्वेजेस असेल त्याच्याबद्दल जास्ती शिकायचं आहे आणि कल्चर. म्हणजे तुला ट्रान्सलेटर व्हायचं आहे का एंटरप्रेन्योरशिप मध्ये जायचं आहे? हा, एंटरप्रेन्योरशिप किंवा ट्रान्सलेटर पेक्षा ते आता AI मध्ये नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग आली आहे, म्हणजे ह्युमन लँग्वेजेसला आपण मॅथमॅटिक्स आणि त्याद्वारे इंटरप्रेट करू शकतो. ट्रान्सलेटर पण म्हणजे लँग्वेजेस मध्ये. ओके. याच्यामध्ये मी सजेशन असं करेल तुला, इंग्लिश आणि फॉरेन लँग्वेज युनिव्हर्सिटी हैदराबाद या ठिकाणी यांची एंट्रन्स एक्झाम आहे, ही जर दिली तर तुला तिथं जर बॅचलर ऑफ आर्ट्स अँड इंग्लिश मध्ये जर मिळालं तर तुला तिथे इन अदर लँग्वेजेस तुला तिथं शिकता येईल आणि त्याच्याबरोबर ट्रान्सलेशन म्हणून तुला काम करता येईल. हा पहिला मुद्दा. दुसरा महत्वाचा मुद्दा, IIT मद्रास, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, आता त्या वुमन्स रिसर्चच्या रिलेटेड एक एंट्रन्स एक्झाम आहे, त्याचे फॉर्म आता आलेले आहे. ते जर फॉर्म भरले तिथं MA इकॉनॉमिक्स, MA ह्युमॅनिटी आणि MA इंग्लिशला ऍडमिशन आहे. आणि तिथून जर तू ते जर शिक्षण घेतलं आणि तिथं फॉरेन लँग्वेजचे कोर्सेस चालतात IIT मद्रासला, आणि तिथून जर तो MA 5 वर्षाचा कोर्स केल्यानंतर तुला तुझं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी भारताचं एक 7 परिषद युनेस्को सारख्या ठिकाणी तुला संधी मिळेल. हे झालं शिक्षणाबद्दल. जर तू फॉर एक्झाम्पल कुठूनही जर तू BA इंग्लिश मध्ये जर घेतलं आणि त्याच्यानंतर एंटरप्रेन्योरशिप म्हणून एक प्रोग्राम आहे डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात, पण त्याच्यासाठी तुला तुझं रीडिंग चांगलं असणं गरजेचं आहे, अवांतर वाचन खूप चांगलं असणं गरजेचं आहे, त्याच्यानंतर तुला डिबेट कॉम्पिटिशन मध्ये भाग घेणं गरजेचं आहे. ते अवांतर वाचन असेल तर त्या पद्धतीने तुझं नॉलेज जेवढं वाढेल तेवढं तुला ग्रोथ जास्त मिळेल. त्याच्याऐवजी त्याच्याच बरोबर सायमल्टेनियस जर एखाद्या वेळेस तुला जर नाही जर जमलं तर माझं मत आहे की BJ बॅचलर ऑफ जर्नलिझम इंग्लिश मीडियम मध्ये जर तू घेतलं आणि त्यानुसार जर तू BJ मध्ये जर ऍडमिशन घेतलं तर त्याच्यातून मिळणारी ऑपॉर्च्युनिटी खूप चांगली आहे. तुला अवांतर सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी शिकायला मिळेल. त्याच्याबरोबर तुझा ट्रान्सलेटरचा फायदा तुला त्या ठिकाणी होईल की ज्या पद्धतीने तुला ट्रान्सलेटर म्हणून काम करण्याची संधी, एंटरप्रेन्योरशिप म्हणून तुझं वक्तृत्व त्या ठिकाणी पर्सनॅलिटी खुलेल. अशा पद्धतीने केलं तर ते सगळ्यात चांगलं राहील. ओके सर, थँक्यू सर. मला पहिला एक ओके. Thank you, sir. Our next question is from Mayank Katkar, FYGC Science Division C. He has asked that he wants to know what should he do to take his career in Navy and from different field like mechanical engineering and all. So what shall he do and what is the salary and scope? ओके.
इंडेक ऍक्च्युली याच्यात दोन फील्ड आहे. एक इंडियन नेव्ही हे गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि इंडियन नेव्ही प्रायव्हेट सेक्टर शिपिंग इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जायचं असेल तर माझं मत आहे की मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केल्यानंतर तुम्हाला प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये एक तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं का इंजिनिअरिंग कुठलीही जरी केलं तर इंडियन नेव्हीची टेक्निकल एंट्री परीक्षा असते. याच्यामध्ये आफ्टर ग्रॅज्युएशनच्या बेसवर तुम्हाला बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर इंडियन नेव्हीमध्ये तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळू शकते. त्याच्यानंतर तुम्हाला 3 मार्ग आहे. एक शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन, कमांड डिफेन्स सर्व्हिसेस आणि तिसरं आहे एनसीसी सर्टिफिकेट क्वालिफाय असेल तर तुम्हाला डायरेक्ट एसएसबी इंट्रो थ्रू आपलं सिलेक्शन त्या ठिकाणी इंडियन नेव्हीमध्ये केलं जातं. ते जर नाही झालं तर त्या इंट्रन्स एक्झाम थ्रू जर इंडियन नेव्हीमध्ये तुमचं सिलेक्शन जर झालं तर तिच्यामध्ये लेवल ठरलेलं असतात. त्या लेवलनुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी संधी मिळते. पण याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट इंडियन नेव्हीचे जे सॅलरी आहे या बेसिक लेवलवर ठरलेलं आहे. 60,000पासून तर 1,20,000पर्यंत सॅलरी तुम्हाला गव्हर्नमेंटची मिळते. पण गव्हर्नमेंटच्या फॅसिलिटीज सगळ्या तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी मिळते. पण जर तुम्ही प्रायव्हेट शिपिंग इंडस्ट्रीमध्ये जर जायचं जर म्हटलं तर त्यांच्या स्वतःचे एंट्रन्स एक्झाम असतात आणि त्यांच्या सिलेक्शन बॉडी समोर तुमचं सिलेक्शन जर झालं तर तुम्हाला शिपिंग म्हणजे नेव्हीमध्ये तुम्हाला जाण्याची संधी आहे. आणि प्रायव्हेट शिपिंग कंपन्या, प्रायव्हेट मरीन सेक्टर जे आहे खूप मोठं आहे आणि तिथून मिळणारी जी ऑपॉर्च्युनिटी आहे ती खूप चांगल्या पद्धतीने तगडा पॅकेज देणार आहे. पण मी एक सजेशन करेल, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जर जायचं असेल तर याच्यामध्ये नाण्याच्या 2 बाजू असतात. एक तर तुम्हाला सॅलरी चांगली मिळते, रेप्युटेशन मिळतं, ऑपॉर्च्युनिटी चांगली, ही नाण्याची चांगली बाजू. नाण्याची दुसरी बाजू अशी असते की पहिली गोष्ट तुम्हाला एक तर त्या ठिकाणी पाय घसरण्याची शक्यता दाट असते. तुम्ही व्यसनाधीन होण्याची शक्यता जास्त असते. जर तुम्हाला पैसा कमवण्याचं जर लालच जर लागलं म्हणजे पैसे कमवण्याची जास्त जर तुमची हवस जर असेल तर तुम्ही स्मगलिंगच्या सुद्धा मार्ग जाऊ शकता. म्हणून त्या दृष्टिकोनातून तुमचं एम टार्गेट जर चांगलं असेल, तुमचं ध्येय जर चांगलं असेल तर तुम्ही त्या फील्डमध्ये चांगल्या पद्धतीने करिअर करू शकता. ओके, त्याच्यासाठी आयएमएची सीईटी द्या तुम्ही जर तुम्हाला खरंच चांगलं करिअर घडवायचं असेल. ओके, पुढे नेक्स्ट. Thank you, sir. Next question is from Meera Bhatt, FYGCC. She has asked that is there any career if we merge science and designing? She even wants to know about NATA and is there any fusion of designing and science? And she has also asked that is JJ College of Arts in Mumbai suitable for this? आता 12वीला आहे का ते? हॅलो हॅलो, हा सर. 12ला आहे ना? सर ते नाही माहिती, त्यांनी फक्त क्वेश्चन टाकलेला चॅट बॉक्स. बरं, हा. याच्यामध्ये ते जे आर्ट स्कूलचं आलं होतं त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये डिझायनिंगचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्याचं कोणत्यामध्ये डिझायनिंग मध्ये जायचं त्याच्यावर डिपेंड आहे. मी माझ्या पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं NID UCIT ऑल इंडिया डिझायनिंग इन्स्टिट्यूट आणि त्याच्यानंतरचं आहे एक IICB क्राफ्ट डिझायनिंग, हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे इन्स्टिट्यूट आहे. या ठिकाणी जायचं असेल तर यांच्या परीक्षेचे तारखा निघून गेलेल्या आहे. UCIT NIDच्या तारखा म्हणजे परीक्षेचा रिझल्ट आता यायचा बाकी आहे. फक्त आता सध्या जे आर्ट स्कूलमध्ये जे आहे याच्यामध्ये बॅचलर ऑफ फाईन आर्टला तुम्हाला जाण्याची संधी आहे. त्याच्यासाठी महाराष्ट्राची सीईटी तुम्हाला द्यावा लागेल. ही वेगळ्या प्रकारची सीईटी असते, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला शाळेत असताना इंटरमिजिएट आणि एलिमेंटरी ही परीक्षा दिल्यानंतर तुम्हाला फाईन आर्ट मध्ये तुम्हाला जात आहे. पण याच्यानंतर तुम्हाला कोणत्या डिझायनिंग मध्ये जायचं, स्पेशलायझेशन कशात करायचंय, इंजिनिअरिंग डिझायनिंग, इंटेरियर डिझायनिंग, त्याच्यानंतर फॅशन डिझायनिंग, ऍपरल डिझायनिंग, टेक्सटाईल डिझायनिंग, त्याच्यानंतर मेडिकल डिझायनिंग, कोणत्या फील्डमध्ये जायचं का कार डिझायनिंग मध्ये जायचं हे त्याच्यावर डिपेंड आहे. हे ग्रॅज्युएशन नंतर स्पेशलायझेशन करण्याची संधी आहे, हे लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंग डिझायनिंग हे मुंबईलाच इन्स्टिट्यूट होते, ते टॉप लेवलवरती आहे. नेक्स्ट. सर मला एक डाऊट होता. बोला. सर ते जर नीट मध्ये क्लिअर नाही झालो तर सायन्स मधून दुसरा कोणता स्कोप आहे का? दुसरे कोणते फर्दर स्टडी करू शकतो का जर नीट क्लिअर नाही झालं तर? नीट क्लिअर नाही जर झालं तर पहिली गोष्ट, मराठी बोलू?
हा सर, हॅलो? मराठी किंवा हिंदी पण चालेल. हा, नीट स्कोर जो आहे, आता पहिली गोष्ट 720 मार्क आहे, बरोबर आहे. 720 मार्काची नीट आहे. तुमचा पहिले स्कोर काय येतो, तुमचा स्कोर आल्यानंतर त्याच्यावर डिपेंड समजेल आपल्याला की तुम्हाला जर 220 मार्क मिळाले किंवा 300 350 मार्क मिळाले. पण जर तुम्ही 350च्या पुढे जर मार्क घेतलं तर मी असं सजेशन करेल तुम्ही रिपीट करणं योग्य ठरेल. कारण पुढच्या वेळेस तुम्ही रिपीट केलं तर तुम्ही नीट क्रॅक करू शकाल. पण नीट रिपीट करताना इतर ठिकाणी ऍडमिशन घेणं योग्य नाही. जर तुमचं नीट 350च्या आत जर आलं तर तुम्हाला मेडिकल फील्ड मधले मी तुम्हाला कोर्सेस सांगितले की BMS, BHMS, BMS आहे, प्रोथोटिक्स आहे, ऑर्थोटिक्स आहे. ऑर्थोटिक्स आणि प्रोथोटिक्स हा अभ्यासक्रम जो आहे हा मुंबईलाच आहे, फक्त एकाच ठिकाणी हाजी अलीला. आणि तो कोर्स सगळ्यात चांगला आहे आणि त्याच्यामध्ये मिळणारं जे आहे पैसा तो खूप चांगल्या पद्धतीने मिळतो. पण तिथं फक्त 30 जागा आहे. तिथं जर ऍडमिशन मिळालं तर तुमचं फ्युचर चांगलं आहे. त्याच्यानंतर जे आहे बॅचलर ऑफ स्पीच इन हेअरिंग लँग्वेज हे नीटच्या बेसवर आहे आणि हे वेटरनरी. जर याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर सरळ सरळ तुम्ही BSc ऑप्शन चॉईस केलेलं कधी पण चांगलं राहील. हे माझा सल्ला राहील तुम्हाला. ओके येस सर. सर मला एक म्हणजे तुम्ही काय फॉरेन एज्युकेशनच्या बद्दल एकदा रिपीट करणार का प्लीज? कोणत्या फॉरेन एज्युकेशन पुढं काय 12च्या नंतर काय फॉरेन ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत का याच्याबद्दलचं प्लीज? नाही, ऍक्च्युअली फॉरेन एज्युकेशन बद्दल मी तेवढं खरं मी काम करत नाही. पण मी थोडक्यात मी फक्त एवढं सांगतो, फॉरेन एज्युकेशनसाठी तुम्हाला सॅट अँड टॉफेल द्यावं लागेल. तर सॅट आणि त्याचा स्कोर जर चांगला आला तर तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळेल. पण सॅटच्या बेसवर जर तुम्हाला चांगली 1600 मार्काची परीक्षा असते, 1600 मार्काची, त्याच्यापैकी 1500च्या पुढे मिळालं तर तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळेल बॅचलर ऑफ सायन्स साठी. पण तुम्हाला कशाला जायचं, पण चांगली युनिव्हर्सिटी चांगलं जर भेटत असेल करावं. याच्या संदर्भातलं डिटेल पाहिजे असेल तर मी तावडे मॅडमकडे मी ते फॉरेन एज्युकेशनचे काउन्सिलर मी त्यांचा नंबर तुमच्या त्या मॅडमकडे पाठवतो. तुम्ही मॅडमकडून तो नंबर घेऊन घ्या म्हणजे तुम्हाला डिटेल सांग. कारण फॉरेन एज्युकेशनचा माझा तेवढा अभ्यास नाही. ओके सर, थँक्यू सर. Next question is from Prarthana Sawant, FY division. He has asked, are there any colleges in Mumbai or Maharashtra for tech food and technology course? ओके. फूड टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भात जे आहे, पहिली गोष्ट तुम्हाला एक CET किंवा JET परीक्षा द्यावा लागेल. त्याला मॅथ हा विषय कंपल्सरी आहे 12वीला, पहिला मुद्दा. जर फूड इंजिनिअरिंग करायचं असेल तर मुंबईमधलं सगळ्यात टॉप कॉलेज आहे ICD, इन्स्टिट्यूट ऑफ द केमिकल टेक्नॉलॉजी, माटुंग्याला. तिथं पाहिजे असेल तर JEE किंवा CETच्या बेसवर तुम्हाला ऍडमिशन मिळू शकतं. हे एक. दुसरं एक ऑप्शन आहे मुंबईमध्ये, मला वाटतं MGM जे पनवेल याच्या जवळ आहे तिथं फूड टेक्नॉलॉजी इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे. पण हे जे प्रोसेस आहे फूड टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भातलं ऍडमिशन हे ऍग्रिकल्चरच्या बेसवर ऍडमिशन दिल्या जातं, हे लक्षात घ्या. त्या थ्रू तुम्हाला जाता येतं. महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात गव्हर्नमेंटचं कॉलेज जर म्हटलं तर ते आहे परभणी कृषी विद्यापीठ परभणी. दुसरं कॉलेज जर बघायचं म्हटलं टॉप मोस्ट पुण्यामध्ये MITचं कॉलेज सगळ्यात चांगलं आहे. ते कॉलेज तुम्हाला फूड टेक्नॉलॉजीसाठी एक चांगलं आहे. जर भारतातलं जर पाहिजे असेल तुम्हाला तर भारतामध्ये हरियाणाला भारत सरकार फूड मंत्रालयाच्या अंतर्गत ते FTI नावाची इन्स्टिट्यूट आहे की ज्या ठिकाणी तुम्हाला JEE मेन्सच्या बेसवर तुम्हाला ऍडमिशन दिलं जातं. हे फूड टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भातलं आहे. नेक्स्ट इंडियन. Hello sir. I'm Rashika Patil from FIDC Science. मला विचारायचं होतं की for further studies or for graduation, is there any specific scholarship that we can give, like in field of architecture? आर्किटेक्चर साठी स्कॉलरशिप वगैरे काय फ्युचर काय याबद्दल तुमचा प्रश्न आहे ना? Yes. हॅलो. Yes sir. आर्किटेक्चरला एक तर नाटा किंवा JEE पेपर तुम्हाला द्यावा लागेल, पहिला मुद्दा. ते दिल्यानंतर आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंगला तुम्ही 5 वर्षाच्या शिक्षणासाठी ऍडमिशन घेऊ शकता. तुम्ही ओपन कॅटेगरी ना पाटील म्हटल्यानंतर? नाही, OBC आहे. OBC. याच्यासाठी तुम्ही कुठल्या कॉलेजला तुम्हाला कॅप राऊंड थ्रू जर नंबर लागला तुमचा, गव्हर्नमेंटच्या राऊंड नुसार जर नंबर लागला तर तुम्हाला गव्हर्नमेंटची स्कॉलरशिप तुम्हाला दिला जाते. जी OBC कॅटेगरीनुसार जी स्कॉलरशिप असेल त्या पद्धतीने तुम्हाला त्या ऍडमिशन त्या ठिकाणी स्कॉलरशिपच्या बेसवर ऍडमिशन मिळू शकतं.
पण ऍडमिशन घेताना तुम्हाला पूर्ण फी पहिले भरावा लागते. म्हणजे काय जे कॉलेजने जेवढी फी असेल ती एका वन आयटम मध्ये भरायचं आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेस ऍडमिशन झालं, कन्फर्म झालं, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन तुम्हाला गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरावा लागेल. त्याच्यामध्ये तुम्ही जेवढी पण फी भरलेली असेल, हॉस्टेल जर घेतलं असेल तर त्याच्या पावत्या इन्क्लूड त्याच्यामध्ये करायचा. त्याच्यानंतर तुम्हाला ती स्कॉलरशिप पूर्ण वापस येते. त्याच्यामुळे काही अडचण नाही, तुमची फी वापस येते. आणि आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंग साठी फ्युचर खूप चांगल्या पद्धतीनं आहे आणि चांगलं करिअर आहे. पण थोडंसं खूप मेहनत करावं लागेल, तुमच्यामध्ये क्वालिटी निर्माण करावं लागेल, तर फ्युचरमध्ये आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंगला स्कोप आहे. पण आता गॅरंटी सांगता येत नाही. आर्किटेक्चर बेटर वे तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंग जर केलं ना तर तो फायदेशीर जास्त आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही निकमर मध्ये जर गेला, ही भारत सरकार भारताची चांगली टॉप लेवलची इन्स्टिट्यूट आहे निकमर, ती पुण्याला आहे, ती भारतामध्ये एकमेव आहे. आणि निकमर थ्रू तुम्ही जर तिथून काही एखादा डिप्लोमा जर केला आणि त्याच्यानंतर मिळणारी जी ऑपॉर्च्युनिटी आहे ही करोडोचं पॅकेज, तुम्हाला लाखोचं पॅकेज तुम्हाला मिळू शकतं. हा एक सल्ला आहे तुम्हाला, स्टँड बी तयार करायचा. आफ्टर सिव्हिल इंजिनिअरिंग इन पुणे हा प्लॅन सांगितला का तुम्ही? नाही, सिव्हिल इंजिनिअरिंग कुठूनही करा तुम्ही, पण पोस्ट ग्रॅज्युएशन जे आहे तर तुम्ही निकमर मधून स्पेशलायझेशन करा किंवा मग आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंग निकमर. ओके किंवा हे जे आहे गव्हर्नमेंट सेक्टरचं एमपीएससीची परीक्षा असते इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसची, ती दिल्यानंतर तुम्ही क्लास 1 ची परीक्षा देऊन गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून काम करू शकतात. कारण सिव्हिल इंजिनिअरिंगला डिमांड त्या ठिकाणी जास्त आहे. त्याच्यानंतर रेल्वे डिपार्टमेंटला सिव्हिल इंजिनिअरिंगला जास्त मागणी आहे. त्याच्यानंतर इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेसच्या परीक्षा देऊन तुम्ही भारताचं कंट्रोल तुमच्या हातामध्ये घेऊ शकतात. पण ते आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंग करू शकत नाही, हे लक्षात घ्या. किंवा मग गुजरात फॉरेन्सिक सायन्स इन्स्टिट्यूट मध्ये, गुजरात फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये एमटेक मध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग आणि फॉरेन्सिक सायन्स एक अभ्यास स्पेशलायझेशन तिथं केला तर तुम्हाला भारतामध्ये खूप मागणी राहणार आहे. जे मोठमोठाले तुमच्या मुंबईमध्ये खूप बिल्डिंग कोसळतात, मग ते फॉरेन्सिक सायन्सचा रिपोर्ट द्यावा लागतो, याचं लाईफ किती आहे, सगळ्या गोष्टी कशा तपासल्या जातात. एक तर निकमर मध्ये का गुजरात फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीमध्ये चांगल्या पद्धतीने. ओके, नेक्स्ट. थँक्यू सर. सर मी SYGCचा स्टुडंट आहे. मला असा डाऊट आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटर सायन्सच्या रिसर्च मध्ये पुढे काही ऑप्शन्स आणि स्कोप्स काय आहेत? भरपूर स्कोप आहे. ENTC जर तुम्ही केलं, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन ही ब्रँच जर घेतली, लक्षात घ्या, ही जर ब्रँच जर घेतली आणि त्याच्यानंतर तुम्ही गेट नावाची परीक्षा जर दिली, ग्रॅज्युएशन अप्रेंटिस फॉर इंजिनिअरिंग, आणि तुमचा जर ऑल इंडिया रँक जर तुमचा 500च्या आत 100च्या आत जर आला तर एमटेक IIT मध्ये करू नका. मग कुठं जा, एक तर तुम्ही डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ द ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी नावाची युनिव्हर्सिटी आहे, त्या ठिकाणी एमटेक PhD करण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला महिन्याला 35,000 ते 45,000 रुपये स्टायपंड मिळेल. पुस्तकासाठी 50,000 रुपये वेगळे मिळतात, हॉस्टेलसाठी पैसे वेगळे मिळतात. आणि तिथून पासआउट झाल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट एंट्री DRDO, डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन, त्याच्यानंतर इस्रो, अशा बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला संधी, त्या ठिकाणी तुम्हाला रिसर्च फील्ड मध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने संधी मिळते. ओके, हॅलो. ओके सर, थँक्यू सर. ऍक्च्युली हे खरं जर हॅलो सर, बोला सर अबाउट पायलट इन्फॉर्मेशन, पायलट जॉब. पायलट जॉब 12वीला तुम्हाला पहिली गोष्ट पायलट होण्याची तुमची ॲबिलिटी आहे का हे ॲप्टिट्यूड टेस्ट माध्यमातून तपासून घ्या. ज्या विद्यार्थ्याला एका सेकंदामध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता ज्या विद्यार्थ्यांमध्ये आहे तो विद्यार्थी पायलट मध्ये जाऊ शकतो. पहिलं पायलट जर व्हायचं असेल तर इंदिरा गांधी इन्स्टिट्यूट देहरादून रायबरेली यांची एक एंट्रन्स एक्झाम आहे, ती तुम्ही देऊ शकता. ती परीक्षा दिल्यानंतर तुमची कल चाचणी घेतल्या जाते, ॲप्टिट्यूड टेस्ट घेतल्या जाते, आणि ते टेस्ट झाल्यानंतर तुम्ही कमर्शियल पायलट लायसन्सचा तुम्ही विचार करू शकता. ही एक संधी तुमच्यासाठी आहे. दुसरी एक संधी मुंबई विद्यापीठाच्या अंतर्गत BSc इन एव्हिएशन अभ्यासक्रम आहे. तो केल्यानंतर तुम्ही कमर्शियल स्टुडंट पायलट लायसन्स साठी अप्लाय करू शकता. स्टुडंट पायलट लायसन्स साठी जर अप्लाय केला आणि तुमचं सिलेक्शन जर झालं तर तुमचं 250 तासाचं उड्डाण होणं गरजेचं आहे. ते लायसन्स मिळाल्यानंतर मग तुम्हाला प्रोफेशनल लायसन्स साठी अप्लाय करावं लागेल. त्याच्यासाठी 450 तासाचं उड्डाण तुमच्याकडं ते
असणं, अनुभव असणं गरजेचं आहे. ते प्रोफेशनल लायसन मिळाल्यानंतर तुम्ही कमर्शियल पायलट लायसन अप्लाय करू शकतात. आणि कमर्शियल पायलट लायसन तुम्हाला 600 ते 650 तासाचं उड्डाण तुमच्याकडं तेवढा अनुभव असणं गरजेचं आहे. तर तुम्हाला ते कमर्शियल पायलटचं लायसन तुम्हाला इश्यू होतं. आणि त्यानुसार तुम्हाला पायलट होण्याची संधी प्रायव्हेट कंपन्यामध्ये, तुम्हाला शिपिंग कंपन्या, इंडस्ट्रीमध्ये, याच्यामध्ये संधी आहे. एअरफोर्समध्ये, प्रायव्हेट एव्हिएशन कंपन्या, त्या ठिकाणी संधी आहे. तर हेच जर तुम्हाला डिफेन्स, एअरफोर्स, इंडियन नेव्ही, इंडियन आर्मीमध्ये जर जायचं असेल तर इंजिनिअरिंग नंतर किंवा बीएससी नंतर, बीएससी ला फिजिक्स, 12वीला सुद्धा फिजिक्स आणि मॅथ हा विषय कंपल्सरी लागतो. आणि बीएससी ला सुद्धा फिजिक्स, इंजिनिअरिंग मध्ये मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग असेल. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला इंडियन नेव्ही, इंडियन एअरफोर्स आणि इंडियन नेव्हीच्या सेपरेट पायलट साठी अप्लाय तुम्हाला करता येतो. आणि त्यानुसार त्यांच्या इंटरनल परीक्षा पासआउट झाल्यानंतर, त्यांचे टेस्ट क्वालिफाय झाल्यानंतर तुम्हाला ते ट्रेनिंग साठी दिलं जातं. नंतर तुम्ही फायटर पायलट म्हणून तुम्ही जाऊ शकता. ओके, थँक्यू सर. हॅलो सर, मुलींसाठी डिफेन्स मध्ये करिअर ऑप्शन्स काय 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 मुलींसाठी डिफेन्स मध्ये करिअर ऑप्शन्स मुलींसाठी ना? हो. हॅलो, हा, मुलींसाठी संधी अशी आहे आता. हिच्यामध्ये जर आता मुलींसाठी आता ह्या सरकारने 12वीच्या बेसवर सुद्धा तुम्हाला मिलिटरी डिफेन्स साठी भरती जाता येतं. हिच्यामध्ये जनरल ड्युटी सुद्धा करता येते. बीएसएफ मध्ये, भारत बॉर्डर फोर्स मध्ये तुम्हाला जाता येतं. त्याच्यानंतर जर तुम्हाला अधिकारी लेवलवर जर जायचं असेल तर तुम्हाला कंबाईंड डिफेन्स सर्व्हिसेस, शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आणि एनसीसी सर्टिफिकेट क्वालिफाय असल्यानंतर तुम्हाला या 3 मार्गाने तुम्हाला जाता येतं डिफेन्स मध्ये अधिकारी लेवलवर. आणि त्यानुसार तुम्हाला त्या ठिकाणी जर एंट्री मिळाली, पण तुम्हाला कमीत कमी जॉईन झाल्यानंतर 5 वर्ष तुम्हाला लग्न करता येत नाही. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्या पुढच्या प्रोसेस, त्या ट्रेनिंग मध्ये टिकणं गरजेचं आहे. त्यानुसार तुम्हाला अधिकारी लेवलवर जाता येतं. नेक्स्ट. So which career options are most in demand like nowadays? Which is the most demanded career option? मोस्ट डिमांड ऑप्शन्स Yes sir. म्हणजे कोणत्या करिअरला जास्त डिमांड असणार हा तुमचा प्रश्न आहे. Yes yes. काय पहिली गोष्ट सांगू बेटा तुम्हाला, सगळ्या फील्डला डिमांड आहे. कोणतंही असं एक फील्ड नाही की ज्याला डिमांड नाही. मी क्लिअर सांगतो, तुम्ही UG कुठूनही करा, म्हणजे ग्रॅज्युएशन तुम्ही साधं BA करा, BCom करा, BSc करा, MBBS करा, इंजिनिअरिंग करा, IITतून करा या लोकल कॉलेजमधून, तुमच्या स्वाटे कॉलेजमधून करा. पण ज्यावेळेस तुम्ही इंटरेस्ट कोणत्या स्पेशलायझेशन मध्ये करता, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कोणत्या पोस्ट ग्रॅज्युएशन नॅशनल स्टुडंट म्हणून करतात, तुमचं टॅलेंट काय दाखवतात त्याच्यावर तुमचं डिपेंड करिअर करतात. हे लक्षात आलं? लक्षात तुमच्या? फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो तुम्हाला, आजपर्यंत तुम्ही करिअरचं सेशन ऐकलेलं आहे याच्या पहिले कधी? माझं ऐकण्याच्या अगोदर याच्या पहिले करिअरचे ऑप्शन्स कधी ऐकले होते का? हॅलो, याच्या पहिले तुम्ही करिअरचे सेशन कधी मुंबईमध्ये अटेंड केलेले आहे का? ऑनलाईन म्हणा का फिजिकली म्हणा? Yes sir. एवढ्या मी ज्या संधी हॅलो सर. हॅलो, मी जेवढ्या करिअरच्या संधी सांगितल्या एवढ्या कधी ऐकायला मिळाल्या होत्या तुम्हाला? हॅलो, नाही सर. नाही. बरोबर. आता तुम्ही मुंबईचे, मी कुठे आहे? औरंगाबादला, ते पण एका ग्रामीण भागामध्ये आहे. मी एवढी क्वालिटी निर्माण केलेली आहे की मी एवढ्या ज्या ब्रांचेस मी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी, मी फक्त आता सायन्स बद्दल बोलतोय बरं का. मी आर्ट्स बद्दल बोलत नाही, कॉमर्स बद्दल बोलत नाही, की हाऊ इंजिनिअरिंग नंतर बोलणार नाही, BSc नंतर बोलणार नाही, MBBS नंतर नाही. फक्त हे 12वी नंतरची ऑपॉर्च्युनिटी मी तुम्हाला फक्त सायन्स बद्दल सांगतो, कारण मी ती क्वालिटी माझ्यामध्ये निर्माण केलेली. म्हणून करिअरच्या बाबतीत तुम्हाला तुमच्यामध्ये टॅलेंट तुम्हाला निर्माण करावं लागेल, क्वालिटी निर्माण करावं लागेल. त्यानुसार तुमचं फ्युचर आहे, हे लक्षात घ्या.
तुम्ही रिटेल मार्केटिंग मध्ये तुम्हाला संधी आहे, त्याच्यानंतर रिसर्च मध्ये संधी आहे, सगळ्या फील्ड मध्ये संधी आहे. पण तुमच्यामध्ये ती क्वालिटी निर्माण करणं गरजेचं आहे. मी काय चांगल्या पद्धतीने देऊ शकतो तो विचार तुम्हाला करणं. आलं लक्षात? ओके सर, बेस्ट कॉलेजेस फॉर आर्किटेक्चर जे कॉलेज अच्छी है क्या? जे कॉलेज तो सेकंड में है, लेकिन पुणे का जो कमिंस कॉलेज जो है वो टॉप मोस्ट. क्या सर? वो पुणे में जो कॉलेज है, कमिंस कॉलेज जो है वो टॉप मोस्ट है. उसके बाद में बॉम्बे का रिजवी कॉलेज. जे कॉलेज अच्छा है, जे कॉलेज अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अभी क्या होगा, वहाँ फैकल्टी का प्रॉब्लम वाला है. वो सिर्फ नाम से नहीं लेना, अपने को पढ़ाई से मतलब है. अपने को क्वालिटी का इंजीनियरिंग, अपने को नॉलेज मिलना जरूरी है. नाम से कोई रखा नहीं, अपने को क्वालिटी का. सर, तो मुंबई में कौन सी अच्छी है? एक रिजवी कॉलेज है, उसके बाद में इसका सोमैया का एक कॉलेज अच्छा है. मैं निकाल के देता हूँ. अगर मैं आपका नाता होने के बाद मेरे को फोन करो, मैं लास्ट में वो नंबर देने वाला हूँ. मैं आपको डिटेल कॉलेज की लिस्ट बना के दे दूंगा बॉम्बे का. लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ. हाँ, Sir, after qualifying for JEE, what is the further procedure for IB or RAW? JEE, IB और रॉ. Yes, हेलो. sir. हाँ, पहली बात ये है, लेकिन पहली बात ये है, अगर आपको रॉ में या IB में जाना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है. दूसरी बात, आपका फिजिकल फिटनेस एकदम स्ट्रांग होना जरूरी है. अगर तुम दुबली पतली हो, अगर बेंडी हो तो आप जा नहीं सकते. आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होना जरूरी है. तीसरी बात, कुछ भी आपके पास पेट में कोई भी बात रहना जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के बारे में जो बात है पेट में कहीं रहती नहीं, तुरंत बक देते हैं. बराबर है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है. उसके बाद में IB के इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेपरेट से इंट्रेंस एग्जाम होते हैं. वो बेस के ऊपर इंट्रेंस एग्जाम होने के बाद उसका सिलेक्शन, उसका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू होने के बाद उसका बॉडी फिटनेस चेक किया जाता है. उसके बाद में आपका पूरा चेक किया जाता है. उसके बाद में आपका सिलेक्शन इसमें होता है. लेकिन रॉ का जो सिलेक्शन है, ये तो आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, यूपीएससी का IPS लेवल का. उसके बाद में उसके ऊपर डिपेंड रहता है. अगर आपको टॉप 10 में आते हैं तो आपके रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन रॉ में जो है उनका जो इंटरव्यू जो होता है वो बहुत हार्ड होता है. हार्ड वो अगर सिलेक्शन होता है तो अपने को रॉ में एंट्री मिलती है, तो नहीं. समझ में? सर, प्लीज आणि अजून काही कॉलेजेस सजेस्ट करू शकाल BSc सायकोलॉजी साठी महाराष्ट्रामध्ये? BSc सायकोलॉजी साठी जे आहे, पहिली गोष्ट सांगू का बेटा, काही ठिकाणी BSc आहे, काही ठिकाणी BA सायकोलॉजी. करेक्ट? हॅलो. येस सर. तुमच्या मुंबईमध्ये मला वाटतं साठे कॉलेजला का सायकोलॉजी सब्जेक्ट आहे का, तो पहिले बघा. तो दुसरं रुया कॉलेज, तिसरं मिठीबाई, त्याच्यानंतर रुपारेल. हे कॉलेजेस सगळ्यात चांगले. जर पुण्यात जर पाहिजे असेल तर फर्ग्युसन कॉलेज इज बेस्ट. हा, मुंबईचं SNDT कॉलेज, SNDT युनिव्हर्सिटी सगळ्यात चांगलं आहे, ते पण आहे. त्याच्यानंतर जे आहे, काय म्हणतात त्याला, पुण्यामध्ये मॉडर्न कॉलेज आहे, गरवारे कॉलेज आहे. हे कॉलेज चांगले आहे. पण PG करायचं असेल तर 30. त्याच्यानंतर तुम्हाला क्लिनिकल सायकोलॉजी किंवा करिअर सायकोलॉजी जर करायचं असेल तर सिम्बॉसिस बेस्ट. मेंटल सायकोलॉजी करायची असेल स्पेशलायझेशन तर ससूनला, पुण्याला. इथं फक्त एकच आहे महाराष्ट्रामध्ये. पण सगळ्यात बेस्ट जे आहे 30 आहे. सेकंड मुंबई आहे. थर्ड जे आहे, जर तुम्हाला जर भारतात करायचं असेल, मला ते एक सांगायचं राहून गेलं तुम्हाला, JNU जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी दिल्ली आणि दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या सेपरेट इंटरेस्ट एक्झाम आहे. JNUचे सुद्धा सेपरेट इंटरेस्ट एक्झाम आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला BS इन द सायकोलॉजी तुम्हाला करता येतं. हे सगळ्यात टॉप आहे दिल्ली युनिव्हर्सिटी. ओके सर, बीटेक नंतर नॅनो टेक्नॉलॉजी मध्ये जाण्यासाठी कोणते मार्ग असतील?
बीटेक पहिली बीटेक मध्ये तुम्ही बीटेक कशात करताय? एक मेकॅनिकल करताय, इलेक्ट्रॉनिक्स करताय किंवा इलेक्ट्रिकल करताय का ELTC इलेक्ट्रॉनिक्स जर करायचं असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग केल्यानंतर तुम्हाला गेट नावाची परीक्षा द्यावी लागेल. काय द्यावं लागेल? गेट, ग्रॅज्युएशन अप टू डेट टेस्ट. ही परीक्षा दिल्यानंतर मग तुम्हाला नॅनो टेक्नॉलॉजी हा जो अभ्यासक्रम आहे हा तुम्हाला IIT मुंबई, IIT खडगपूर, IIT कानपूर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, त्याच्यानंतर डिफेन्स सिस्टम ऑफ ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी युनिव्हर्सिटी पुणे या ठिकाणी एमटेक इन द नॅनो टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपल्याला करण्याची संधी आहे. सर ओके थँक्यू सर. जावा लँग्वेज साठी काय? जावा लँग्वेजेस साठी बेटा तू आता 12वीचे स्टुडंट आहे का नाही? नाही, 11वी. मग 11वी. आता पहिले काय कर, 11वी 12वी चांगल्या पद्धतीने पास कर. त्याच्यानंतर तू मॅथ मध्ये CET तयारी कर किंवा JEE तयारी कर. त्याच्यानंतर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन, कम्प्युटर इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घे आणि त्याच्यानंतर जावा लँग्वेज स्पेशलायझेशन जे आहे, कम्प्युटर सायन्स किंवा कम्प्युटर इंजिनिअरिंग करत असताना तू जावा लँग्वेजेस शिकली तर तो फायदेशीर तुझ्यासाठी खूप चांगला ठरेल. किंवा इंजिनिअरिंग डिग्री झाल्यानंतर जावा जर केलं तर तो फायदा ठरेल. आता त्याचा विचार करू नको. हॅलो सर, BSc इन सायकोलॉजी आणि BA इन सायकोलॉजी मध्ये डिफरन्स आहे का? अजिबात नाही, सेम. हॅलो सर. सेम आहे, काहीच फरक नाही. हा सर, तुम्ही ब्रीफ करू शकाल का नीटच्या नंतर मेडिकल कॉलेज कोणते घेऊ शकतो? बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस. बेस्ट मेडिकल कॉलेज पहिली गोष्ट महाराष्ट्रात का ऑल इंडिया? महाराष्ट्रात 1 नंबर KM, नंबर 2 आहे KM, नंबर 2 JJ, नंबर 3 नाही नंबर 3 नायर, 4 सायन, 5 कुपर, 6 BJ, 7 JMC नागपूर, 8 इंदिरा गांधी नागपूर, 9 JMC औरंगाबाद. ओके थँक्यू सर. आणि इथं जर जायचं असेल तर कमी तुम्हाला 600+ मार्क पाहिजे. ओके सर. हा बोला. Sir, you can give me information about of scholarship for BHMS. BHMS स्कॉलरशिप. आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं यार? 11th. हाँ, साइंस. पहली बात अपने को नीट देना पड़ेगी. नीट देने के बाद अपने को नीट होने के बाद अपने को BHMS के लिए कैप राउंड के थ्रू अगर एडमिशन मिलता है, कैप राउंड थ्रू के एडमिशन होने के बाद आपका कंफर्म होगा एडमिशन. उसके बाद में महाडीबीटी पोर्टल पे जाके आप कैटेगरी शायद मुस्लिम ओपन, आप माइनॉरिटी में आते, मुस्लिम है ना? यस सर. हाँ, तो आपको माइनॉरिटी के स्कॉलरशिप मिलेंगे बेटा. अगर माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते तो आपको पूरे जो फी भरेंगे वो पूरी आपको वापस आ जाएगी. कोई टेंशन वाली बात नहीं. ओके, हॅलो स्कॉलरशिप मिळते. जर माझं नीट मध्ये नाही झालं, म्हणजे मार्क्स चांगले नाही आले आणि मला रिपीटही नाही करायचंय, तर अब्रॉड मध्ये MBBS चे काय आहेत का? अब्रॉड मध्ये MBBS करता येतं. तिच्यामध्ये तुम्हाला एक रशिया आहे, त्याच्यानंतर बरेचसे देश आहे. अब्रॉडचं मी खरं ऍक्च्युअली काउन्सिलिंग करत नाही, पण ज्या ठिकाणी महाराष्ट्राचं तिथून MBBS पासआउट झाल्यानंतर आपल्याला जी नेक्स्ट नावाची परीक्षा द्यावी लागते. एक्झिट. जर तुम्हाला भारतात प्रॅक्टिस करायची असेल तर ती एक्झिट नावाची परीक्षा तुम्हाला क्वालिफाय व्हावं लागते. जी क्वालिफाय झाल्यानंतर तुम्हाला भारतात प्रॅक्टिस करण्याची संधी मिळते. हे लक्षात घ्या. एवढा आहे, फक्त 35-30 लाखामध्ये तुम्हाला MBBS तिथून पासआउट करता येतं.
काही वाद नाहीये, पण तिकडे एमबीबीएस करण्यापेक्षा आपल्याकडे BMS केलेलं कधी पण चांगलं. ओके सर, थँक्यू. हा सल्ला आहे. हा सर, माझा एक क्वेश्चन होता की प्लेन बीएससी नंतर काय ऑप्शन करू शकतो, काय पुढे करू शकतो? खूप काही ऑप्शन्स आहे. तुम्ही जॅम परीक्षा दिली, तुम्हाला चांगल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट मध्ये ऍडमिशन मिळेल. बीएससी ला सब्जेक्ट कोणते घेऊ शकता तुम्ही? बीएससी मध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ, बायो, बॉटनी, झूम, मायक्रोबायोलॉजी, स्टॅट, जिओलॉजी, जिओग्राफी, बायोटेक्नॉलॉजी. 11 सब्जेक्ट पैकी कोणत्या सब्जेक्ट तुम्हाला इंटरेस्ट आहे? बरोबर आहे. कोणता सब्जेक्ट आवडतो? हॅलो हॅलो ईशा सोळंकी, सब्जेक्ट कोणता आवडतो तुम्हाला? सर, ते अजून म्हणजे हे नाही डिसाइड नाही, बट मी फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी घेतलंय. बर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. जर तुम्ही 11 सब्जेक्ट पैकी तुम्हाला कोणताही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आहे तर तुम्ही गेट देऊ शकतात, जॅम देऊ शकतात, जेस देऊ शकतात, TFR लाईफ सायन्स देऊ शकतात. ही दिल्यानंतर तुम्हाला IIT, IISc, त्याच्यानंतर आयसर अशा बऱ्याचशा इन्स्टिट्यूट. जर तुम्ही बायो का बॉटनी जर घेतलं का बायोटेक्नॉलॉजी जर घेतलं, त्याच्यानंतर एम्स मध्ये MSc इन द बायोटेक्नॉलॉजी मेडिकल जेनेटिक इंजिनिअरिंग अभ्यासक्रम एम्स दिल्लीला, त्याची सेपरेट परीक्षा देऊन तुम्ही जेनेटिक इंजिनिअरिंग तिथं करू शकता. हे सायन्सच्या रिलेटेड झालं. दुसरं, जर तुम्ही CAT देऊ शकतात MBA करण्यासाठी, CMAT देऊ शकतात, GMAT देऊ शकतात. जर तुम्हाला LLB करायचं असेल तर CLAT देऊ शकतात. तुम्हाला जर्नलिझम व्हायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही IIMC ची परीक्षा देऊ शकतात. असे बरेचसे काही इंटरेस्टिंग झाले की ज्या बेसवर तुम्हाला BSc नंतर चांगल्या संधी मिळू शकतात. ओके सर, ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग स्कोप आहे का? जर असेल तर कॉलेजेस कोणते? ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंगला स्कोप आहे. डोळे झाकून ऍडमिशन घ्या. कॉलेजेस जर करायचे असेल, IIT मध्ये सुद्धा ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग आहे. पण जर महाराष्ट्रात करायचं असेल तर राहुरी कृषी विद्यापीठ, राहुरी हे सगळ्यात टॉप कॉलेज आहे. त्याच्यानंतर आहेत अकोला कृषी विद्यापीठ, हे सगळ्यात टॉप कॉलेज आहे. ऍग्रिकल्चर कॉलेज ऑफ नागपूर हे सगळ्यात टॉप कॉलेजेस आहे. गव्हर्नमेंटचे बरं का, प्रायव्हेट भरपूर आहे, पण गव्हर्नमेंट रिकॉग्नायझेशन जे कॉलेजेस अशा ठिकाणी केलेलं सगळ्यात चांगलं. CET मधून मिळेल ऍडमिशन? हो, CET मधून ऍडमिशन मिळेल, पण मुंबईचे पोरं जात नाही बाहेर. So which are the best colleges for engineering? कोणत्या ब्रँचसाठी? Computer engineering. 1 नंबर PICT, 2 नंबर COP, नंबर 3 VJTI, नंबर 4 सरदार पटेल, त्याच्यानंतर सोमय्या, त्याच्यानंतर वालचंद इंजिनिअरिंग कॉलेज, त्याच्यानंतर कमिन्स कॉलेज पुणे, त्याच्यानंतर रिजवी कॉलेज, त्याच्यानंतर आहे पुन्हा VIT, रामदेव बाबा नागपूर, यशवंतराव चव्हाण नागपूर, हे कॉलेजेस सगळ्यात चांगले. Hello sir. Sir, can we get websites of all important institutions like IISER, IISc? काय? Sir, websites भेटू शकतात का इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशनचे? वेबसाईट जे आहे MahaCET.org महाराष्ट्रासाठी, त्याच्यानंतर आहे DTA महाराष्ट्र.org, मेडिकल साठी MHC.org किंवा DMER मेडिकल साठी. त्याच्यानंतर जोसा, IIT, NIT, त्याच्यानंतर ऑल इंडिया मेडिकल जे आहे MCC.nic.in ह्या वेबसाईट महत्वाच्या आहे. आणि NTA वेबसाईटवर अपडेट राहा. जे विद्यार्थी नीट आणि JEE देणार आहात त्यांना NTA.ac.in ह्या वेबसाईटवर जा. त्याच्यामध्ये महत्वाचे लेक्चर IITचे लेक्चर आहे, कारण ते पेपर सेटर प्रोफेसर लोक आहेत. त्यांनी स्वतः युट्यूबवर प्रत्येक सब्जेक्ट वाईज लेक्चर ठेवलेले आहे. ते लेक्चर अटेंड करा, त्याचा फायदा तुम्हाला जास्त समजेल. काय बोललात? NTA? So can you repeat? NTA.ac.in. NTA
NTSEC.in, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी. आणि स्पष्ट विद्यार्थ्यांना. हॅलो, हा बोला. शेवटचा प्रश्न आहे. Can you just suggest me the best colleges all over India for architecture? ऑल ओव्हर ऑफ इंडिया आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंग कॉलेज. दिल्ली टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, त्याच्यानंतर भोपाळ, त्याच्यानंतर अहमदाबाद. आता ते कॉलेजची यादी मला पाहावं लागेल, ते आहे ते. त्याच्यानंतर आहे मद्रास. Is it SEPT University from Ahmedabad? SEPT University आहे का? येस येस येस. हा, आणि भोपाळचं एक सगळ्यात चांगलं आहे ते पण. ऑल इंडिया टेक्निकल काउन्सिलिंग बोर्ड, हे जे काउन्सिलिंग बोर्ड आहे त्या वेबसाईटवर गेलात ना, त्याच्यामध्ये पूर्ण भारतातल्या इंजिनिअरिंग आर्किटेक्चर इंजिनिअरिंग कॉलेजची पूर्ण तुम्हाला लिस्ट मिळेल. त्याच्यातून तुम्हाला सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील. सर, which website? Please repeat once. हा नाही, त्याच्यानंतर IIT कानपूर, IIT अजून एक आहे, हे आर्किटेक्चर साठी चांगलं आहे. आणि NIT नागपूरचं आर्किटेक्चर सगळ्यात चांगलं आहे, नॅशनल इन्स्टिट्यूट. ओके. पण एक आता जाताना शेवटचं सांगतो. सर, आपने कौन सी वेबसाइट बोली थी? AICTE, ऑल इंडिया टेक्निकल काउन्सिलिंग, ऑल इंडिया, AITC. ओके सर. हाँ सर, BHMS हा बोला. BHMS बद्दल इन्फॉर्मेशन सांगाल का? BHMS बद्दल काय पाहिजे? कॉलेज आणि स्कॉलरशिप वगैरे. नाही, स्कॉलरशिपचा मी पहिला मुद्दा क्लिअर केला. कोणती कॅटेगरी? हॅलो, ओबीसी साठी महाडीबीटी पोर्टलवरून तुम्हाला स्कॉलरशिप मिळेल. BHMS कॉलेज हे नीटच्या स्कोरवर ऍडमिशन आहे. कॉलेजेस सगळ्यात महाराष्ट्रामध्ये नंबर 1 धोंडोमामा पुणे, त्याच्यानंतर मुंबईचे 2-3 कॉलेजेस आहे, जे मला वाटतं सायनला वगैरे कॉलेज आहे. आणि त्याच्यानंतर पुण्याचे 1-2 कॉलेजेस चांगले आहेत, ते होमिओपॅथीसाठी. एक औरंगाबादचे 1-2 कॉलेजेस चांगले की जिथे OPD चांगले चालते. आलं लक्षात? ओके. युट्यूब, सोशल मीडिया, गुगल, त्याच्यानंतर व्हॉट्सअप, फेसबुक याच्या भरोश्यावर बसायचं नाही. जी योग्य लिंक असेल त्याच याच्यावर योग्य लिंकवर भेटायचं आहे. आता ज्यांना कोणाला माझ्याकडून काउन्सिलिंग म्हणजे मार्गदर्शन अजून पाहिजे असेल तर मला फोन करू शकतात, माझी अपॉइंटमेंट घ्या. माझा नंबर आहे 9370139988. येस. हॅलो, मी साठे कॉलेजचे प्राचार्य सर, व्हाईस प्रिन्सिपल सर, आणि खास करून तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये जे कम्युनिकेशन घडून आणले ते तावडे मॅडम, मी धन्यवाद देतो. मला इथं आमंत्रित केलं, बोलण्याची संधी दिली, आणि सायन्स असोसिएशन ज्युनियर कॉलेजतर्फे हा कार्यक्रम आयोजित केला. आणि बरेच विद्यार्थी, मित्रमैत्रिणी, पालक जॉईन झाले होते. त्यांचं मी धन्यवाद मानतो. त्यांना शांतचित्ताने खूप चांगल्या पद्धतीने प्रश्न विचारले आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ऍक्टिव्हिटीजसाठी कॉलेजतर्फे चालवल्या जातात. ते खरं धन्यवाद. थँक्यू सर. तुम्हाला पण खूप खूप थँक्यू, कारण एवढं इन्फॉर्मेशन तुम्ही आम्हाला सांगितले, आमच्या मुलांच्या सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स दिले. वी आर रिअली व्हेरी ग्रेटफुल अँड थँकफुल, अँड वी आर व्हेरी हॅपी दॅट वी कुड ऑर्गनाइज दिस गेस्ट लेक्चर ऑफ युअर्स. आता मी निधीला सांगते, प्रोसीड करा. मॅडम एक मिनिट. माझं एक विनंती राहील, जेवढे पण विद्यार्थी जॉईन झालेले होते, फक्त त्यांच्याकडून हे सेशन तुम्हाला सायन्स असोसिएट तर्फे कसं वाटलं, संतोष कारलेचं लेक्चर चांगलं वाटलं असेल चांगला सांगा, वाईट झालं असेल तर तरी सांगा. एका कागदावर त्यांनी त्यांचे फीडबॅक, त्यांचं नाव आणि कॉलेजचं रोल नंबर टाकला तरी चालेल. आणि त्या पद्धतीने तुम्ही व्हॉट्सअपला तुमच्याकडे बोला, तर मला फक्त फीडबॅक तुमच्याकडून मला पाहिजे. जर केलं तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना विनंती आहे, जेवढे बी जॉईन झाले त्यांनी फीडबॅक मॅडमकडे व्हॉट्सअपला त्यावर पाठवून द्या लिहून.
ओके हो सर, मी एक गुगल फॉर्म तयार करेन आणि मग त्यांना मेल करते. ओके, आणि तुम्हाला पाठवेल मग त्याची कॉपी मी. हो हो हो. आता निधी, यू कॅन प्रोसीड नाव. मिस प्लीज जस्ट अ मिनिट. सर, फॉरेन एज्युकेशन साठी मॅमचा नंबर प्लीज शेअर करा तुम्ही रोहिणी मॅम कडे. हो हो, मी करतो. तुम्हाला ते 2 नंबर मी फॉरवर्ड करतो. एक मुंबईचा आणि एक कोल्हापूरचा नंबर आहे. ते माझ्या जवळचे आहेत, त्यांना माझं नाव सांगा, बिल. Hello. So thank you, sir. I hope our audience has got answers of all the career-related questions. Now I request our team member Rahul Shetty to give the formal vote of thanks. ओके. आणि तू छान हे करते इंट्रोडक्शन, खूप छान, बरं वाटलं. धन्यवाद. थँक्यू. Thank you, Nidhi. Myself, Rahul Shetty from FYGC C Division, on behalf of Science Association JC, would like to thank our today's guest of honor and speaker, Shri Santosh Karle Undengaonkar sir, for his valuable and extremely beneficial career guidance lecture. We would like to thank our principal, Dr. Madhav Rajwade sir, for encouraging us to organize such a useful guest lecture on career guidance. We thank all the dignitaries present here for sparing their valuable time with us. We would like to thank Science Association GC teachers for organizing such a fabulous event. We would also like to thank our enthusiastic participants who are patient listeners. And last but not the least, we thank all the technical support staff and all viewers. Thank you so much for making our program successful. Thank you, everyone. I hope now we can conclude the meeting. Once again, thanks to all. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद.